please. In Yeah, case if there please. is anything in between, also I'll call Deepu so that No, नो एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। तो yeah. आज कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में ज़्यादा बात करें, आप बात बिकॉज करिए लोग सब, आप बात करिए। लोग जस्ट लोग वन। हैरान है, लोग हैरान है, परेशान है। ये कर्फ्यू क्या है सर? हाँ 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 कर्फ्यू क्या है साहब? ये पीपल आर सफरिंग। हाँ, सारा This बात करें। conference will now be recorded. We are live to the world, sir. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. We are back with a bang, that too with a honored and esteemed guest. First, let me introduce him. Is Dr. Satish Ranjan, one of the leading molecular immunologists of the world. Welcome to this special show, sir. And also थैंक यू। to all those viewers, the patriots of the show, the informed citizens who were worried that YouTube pulled off Dr. TSPR channel, but we are back on the same reasons only YouTube should answer, because this show always ran on the rule of law, constitution, invoking evidential act. No enmity against individual, nor animosity towards any party or organizations. Issue as per rule of law, constitution, invoking evidential act. This was the theme on which this channel has been floated and has been doing live shows very regularly with honored and esteemed guests like Dr. Satish Ranjan and many more, to whom I say pranam. They are all doing this in larger public interest. When such is the case, how come YouTube time and again pull down the videos and take off the channel of the live stream? Come on. You are curbing the freedom of speech. If you have anything, kindly refer to us, speak to us, kindly let us know where we have gone wrong. We are ready to correct ourselves, but no imposition. YouTube also became popular because they have been championing the cause of commoner. If you move away from the commoner, then alternatives will come. That is why we expect YouTube to become Dr. TSPR channel friendly, public friendly, citizen friendly, and whatever issues we take up, they are in the larger public interest. We don't fear or favor. No enticements, no threats can sabotage or subdue Dr. TSPR live show or Dr. TSPR channel. For that matter, all the honorable guests who regularly appear on this channel with evidences to enlighten the suffering people, the suffering public, the disgusted citizens of the state, country, worldwide. We have nothing against anyone. Kindly understand. Allow us to do our job in a free and fair way, whereas the freedom of expression is never subdued. Sir, kindly welcome to this special show again. थैंक यू वेरी I'll मच not take much डॉक्टर time रेड्डी। because people are waiting in anticipation. People are agonized, in anguish, in pain, and in panic. What is happening, Yeah, sir? What is so this second wave, third wave? What is happening with COVID 19? yeah. So first of all, thank you very much। और we have decided that we will go in a mixed language। Yeah, Yes. so I will also talk in Hindi and English so that larger audience can understand the current situation। सभी लोग को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोविड के बारे में। जैसा आपको पता है कि कोविड का जो पैंडेमिक है, ये 2019 दिसंबर से शुरू हुआ था चाइना के वुहान सिटी से, और ये फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया, और मार्च 2020 में पूरे दुनिया ने इसका पहला वेव जो है सो महसूस किया था। और इंडिया में भी ये पहला वेव जनवरी में पहला केस आया, लेकिन मार्च के आखिर में आके सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया ताकि हम अपने देश को इस महामारी से बचा सके। तो काफ़ी हद तक जो है दिसंबर 2020 तक हम इसमें सफल भी हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक से स्थिति क्यों खराब हो गई? इतनी स्थिति खराब हो गई है कि लोगों के पास जो है ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल रही। तो कुछ इसके पीछे वजह है, और कुछ ये इसके पीछे कुछ ऐसा जो है लोगों का भी कुछ ऐसा रोल है जिसकी वजह से भी ये हुआ है। तो आज हम पूरे डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं।
ठीक है। एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अभी जो सेकेंड वेव है ये पहले वेव से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, और इसमें क्या क्या चीज अब हम लोग को ज्यादा एहतियात कैसे बरतने की जरूरत है। एक एक करके हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला अभी जो इसका वजह है कि अब वायरस, आपको पता है कि वायरस म्यूटेट करता है। तो वायरस म्यूटेशन जो है हमेशा अपने आप को जिंदा, अपने आप को दुनिया में रखने के लिए करता है। इन ऑर्डर टू सरवाइव वायरस म्यूटेट, तो उसको सर्वाइवल के लिए उसका म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है। और ये म्यूटेशन तीन तरीके से हो सकता है। एक तो ऐसा म्यूटेशन हो जिससे कि वायरस को कोई फर्क ना पड़े। दूसरा म्यूटेशन ये हो सकता है कि जो वायरस के लिए फेवरेबल ना हो, जिससे कि वायरस का एक्सटेंशन हो जाए। तीसरा म्यूटेशन इस तरह से होता है जो कि वायरस के लिए फेवरेबल होता है, तो उससे वायरस जो है उसको अपने आप को इस दुनिया में सरवाइव कर पाता है। लेकिन इस तरह का म्यूटेशन इंसानों के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि वायरस जितना मल्टीप्लाई करेगा वो इंसान के लिए उतना खतरनाक है। और इसमें एक बात और समझने की है कि अगर वायरस मल्टीप्लाई करता है, अगर म्यूटेट होता है, तो नया वेरिएंट जो है वो किस तरह का होता है, नया वेरिएंट जो है वो किस तरह का होता है, उसका क्या क्या असर हो सकता है, सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। तो अभी जो सेकेंड वेव है इसके पीछे पहला जो मुख्य कारण है, ये जो नए वायरस के जो वेरिएंट आ गए हैं इंडिया में, उसका एक होना। दूसरा है कि लोगों का दिसंबर के पहले ही लोग बहुत ज्यादा जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना छोड़ दिए हमारे देश में। तो ये उसका भी एक नतीजा है। कहते हैं ना कि एक इंसान अपने इंसान लेवल पे, अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर गलती करता है तो उसका देश कैसे खामियाजा भुगतता है, ये कोविड का सेकेंड वेव सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आज की डेट में। दूसरा, अभी तीसरा कारण है कि अब इसकी वजह से लोगों में बहुत पैनिक हो गया है। तो बहुत सारा सिचुएशन है जिसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी पैनिक के कारण लोग उसको रश कर रहे हैं हॉस्पिटल में या मेडिसिन के लिए। हम सब बात करते हैं इसके बारे में। और चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अब ये जो वायरस है नए तरीके से फैल रहा है, जो कि पहले इतना ज्यादा उस तरीके का होने का उतना ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन अब हमारे पास पूरा सबूत है कि वायरस अब हवा से भी फैल रहा है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि पूरी दुनिया में अभी जो वायरस के जो स्ट्रेन है, 10 तरह के मेनली स्ट्रेन है जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये इसमें से जैसे मुख्य है B1.1.7, ये सबसे पहले यूके में पाया गया था, तो इसीलिए इसको हम फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन यूके कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्ट्रेन है, ब्राजील के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। तो जो पूरे जितने भी म्यूटेंट है ना, उसको WHO के हिसाब से दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और दूसरा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न कुछ 3 तरह की उनमें खूबियां होनी चाहिए उस म्यूटेंट में, तब उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का संज्ञा दिया गया है। तो उसमें सबसे पहला है कि वायरस का ट्रांसमिसिबिलिटी म्यूटेशन की वजह से। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि म्यूटेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो सबसे पहला चेंज उसमें होता है कि वो ज्यादा लोगों में ट्रांसमिसिबल हो जाता है, तो लोगों में ज्यादा फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है कि वायरुलेंस हो जाता है, यानी कि डिजीज का सिविरिटी ज्यादा कराएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये वायरस पहले से ज्यादा वायरुलेंट हो गया है और कैसे बहुत सारे ऑर्गन्स को अभी डैमेज करता है सीधा। और तीसरा इसका जो असर पड़ता है वो सीधा सीधा हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर पड़ता है, जो कि आपको दिख रहा है आज की हालत में अपने देश में। तो ये तीनों खूबियां जो है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न में है। ठीक है। जो कि अभी जो इंडिया में जो वेरिएंट है B.1.617, इसको ये सबसे पहले इंडिया में आइडेंटिफाई हुआ था। इसको डबल म्यूटेंट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें 15 से भी ज्यादा म्यूटेशन है। लेकिन इसके स्पाइक प्रोटीन में मुख्यतः 2 म्यूटेशन है, वो मैं बताऊंगा। इस वजह से इसको डबल म्यूटेंट भी कहते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है, इसको अभी तक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में रखा गया है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से हमको असर पड़ सकता है। तो अभी इसको हमको देखना जरूरी है, लेकिन इसके तो खूबियां ऑलरेडी सारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न से मिलता है। अब दुनिया में बहुत सारे देश ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इससे ज्यादा अब आपको क्या पुख्ता सबूत चाहिए कि ये सचमुच में ये म्यूटेंट ऑफ कंसर्न है। तो अब और ये जो म्यूटेंट का लीनियज पाया गया था, ये सारे सीक्वेंसिंग करके, ये हम वायरस का सीक्वेंसिंग करते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे, और उसके आधार पे फिर इसको हम स्थापित करते हैं कि ये सारे वेरिएंट है। अब इंडिया में जितने सैंपल्स हैं, इंडिया में जितने मरीज होते हैं उसके सैंपल्स लिए जाते हैं अलग अलग जगह से, और फिर उसको हम सीक्वेंसिंग करते हैं, वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। और जो ओरिजिनल जो वायरस था उससे फिर हम उसको मैच करके देखते हैं कि कहाँ से कैसे उसका म्यूटेशन शुरू होता है और किस तरह से, तो उस आधार पे उसका फिर नंबरिंग किया जाता है। तो इंडिया में जो भी सबसे ज्यादा म्यूटेंट का जो प्रेवलेंस है ये B.1.617 है।
और भी बहुत सारे म्यूटेंट है इसमें, अफ्रीकन भी हैं, ब्राजीलियन भी हैं, यूके वाले भी हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि B.1.617 में जो है ना, इसमें इसके स्पाइक प्रोटीन में 2 म्यूटेशन है, लेकिन इसके बाकी जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे म्यूटेशन है, 15 से भी ज़्यादा म्यूटेशन है। और इस म्यूटेंट के बारे में सबसे पहले लास्ट ईयर हम बताया गया था, लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि इस म्यूटेंट के बारे में पता चलने के बाद भी मार्च के आखिर तक आईसीएमआर और भारत सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इसका एक्सेप्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर म्यूटेंट अगर है और उसको अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं, उसका जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर आप ट्रैक नहीं करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी है कि जो अब स्थिति उत्पन्न हो गई। मार्च एंड तक इसको हमने ट्रैक नहीं किया, अब उसकी वजह से क्या हुआ, अभी आपको दिखाता हूँ सारा डेटा उसकी वजह से क्या हुआ। तो ये एक मानता हूँ कि मैं इसको हमेशा सरकार को या जो संस्थाएं हैं उसको हमेशा इस पे नज़र रखना चाहिए और इसका स्टडी करते रहना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जब भी कोई वेरिएंट आता है तो उसका पहले लैब स्टडी करवाए, इससे पहले कि वो इंसानों में इतना नुकसान कर दे कि इंसानों का जीना मुश्किल हो जाए। इनका लैब स्टडी होना चाहिए हमेशा कि इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी है। तो हम लैब में इसको सेल्स में स्टडी कर सकते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में कितना ज़्यादा वो जल्दी से जल्दी ट्रांसमिबल हो रहा है, वायरुलेंट कितना है। तो इसके आधार पर मैं बोलता हूँ कि आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप पूरे देश को सतर्क कर दीजिए कि ये वेरिएंट है और इसकी वजह से ये खतरा हो सकता है, तो हम लोगों को पहले से थोड़ा आगाह कर सकते हैं। तो ये इस स्ट्रेन के साथ यहाँ पे ये बहुत बड़ी कमी रही है जो नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए था। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये डेटा जो है, ये आउटब्रेक इन्फो है, ये जीसैट करके एक संस्था है, ग्लोबल रिपोजिटरी, जहाँ पे पूरी दुनिया का सीक्वेंसिंग का डेटा अवेलेबल रहता है और ये जर्मनी की सरकार के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। और ये जो है सो कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा दोनों का वायरस का ये पूरा डेटा रखता है अपने पास। ये 22 अप्रैल को मैंने ये डेटा का स्क्रीनशॉट लिया था, ये 22 अप्रैल का डेटा याद रखिएगा। तो 22 अप्रैल को मैंने क्या किया, मैंने देखा कि पिछले 4 महीने में हमारे देश में क्या स्थिति थी। तो अगर आप उसका जीनोमिक सीक्वेंसिंग देखेंगे तो ये जो B.161.7 जो है, ये सिर्फ 16% सैंपल्स में पाया गया था। और बाकी ये देखिए यूके वेरिएंट है, ठीक है, ये ब्राजीलियन वेरिएंट है, तो ये सब भी थे, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं था। तो ये आप करीब मान के चलिए कि दिसंबर के आसपास की स्थिति थी भारत में, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि उस समय ये जो वेरिएंट है ये उतना ज़्यादा सैंपल्स में नहीं पाया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें इग्नोरेंस क्या हुआ कि इसका हम लोगों ने फर्दर स्टडी नहीं किया, और स्टडी करके अगर हम समझ लेते उसी समय तो हम शायद ये स्थिति को रोक सकते थे या बचा सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। उसके बाद जब मैं 22 अप्रैल को फिर मैंने भारत का 20 दिन का पुराना स्थिति देखना चाहा कि पिछले 20 दिन में क्या स्थिति चेंज हुई है। अब इसमें पैरामीटर चेंज करके आप इसको देख सकते हैं कि कब कैसी स्थिति रही है। तो मेरे होश उड़ गया, क्यों? क्योंकि वो 16% जो था वो 16% से बढ़ करके करीब 100%, यानी कि उस दिन जितने भी सैंपल भारत में सीक्वेंस हुए थे उस 20 दिनों में, 22 अप्रैल से पहले 20 दिनों में, वो सारे के सारे सैंपल में B.1.617 म्यूटेंट जो है ये था। इसका मतलब है कि जहाँ से ये सैंपल उठाए होंगे पूरे देश में, वहाँ ये वायरस पूरी तरह से स्प्रेड कर चुका है। तो इससे आप एक चीज़ तो साफ समझ सकते हैं कि पिछले 4 महीने में ये स्थिति क्यों इतनी ज़्यादा खराब हुई। ये वायरस तो सीधा जिम्मेदार है फैलना, इसका फैलने से ये स्थिति तो सीधा दिख रहा है डेटा से कि सीधा ये वायरस जो है इससे एसोसिएटेड है। और अब देखिए अब सारे लोग इसको मानने लगे हैं कि हाँ, इसी वायरस की वजह से, इसी म्यूटेंट की वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी दुनिया के देश भी जो है इसी वायरस को जो है इसको इंडियन वेरिएंट बोल करके और यहाँ पे इसको बोल रहे हैं ये जिम्मेदार है, और अपने देश में प्रतिबंध लगा रहे हैं भारत से आने के लिए। तो ये देखिए कैसे 4 महीने में कैसे स्थिति पूरी की पूरी बदल गई और ये हमारे बिल्कुल खिलाफ हो गया। और ये वायरस का इतना जो है इसने इतना डिवास्टेशन जो है पूरे देश में ले आया। अब सबसे जो आश्चर्यजनक स्थिति जो है, फिर मैंने क्या किया, मैं 22 अप्रैल को फिर मैंने ये पूरा डेटाबेस को सर्च किया। मैं सोचा कि अब देखता हूँ कि क्या है। तो उस दिन तो मेरे लिटरली मेरा होश ही उड़ गया, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मैंने कुछ लोगों को बताया कि आज जो मैं जो डेटा देख रहा हूँ ना, वो तो मेरे होश हिला देने वाले थे। क्यों? क्योंकि B.1.617 का मुझे 3 वेरिएंट दिख गया नए,
और सबसे देखा कि 26 और 27 तारीख को फिर देखा कि हैदराबाद के साइंटिस्ट लोगों ने भी इसको पब्लिश किया। ये 25 तारीख को मैंने देखा, मैंने बताया कुछ लोगों को कि अब तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी अगर ये म्यूटेंट अगर पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया। और वाक़ई में अगर आप देखेंगे तो 76% सैंपल में, यहाँ जो सैंपल है, ये 76% सैंपल में इसका वेरिएंट है। ये B.1.617 सिर्फ 6% है, बाकी 70% जो है इसके वेरिएंट .1, .2, .3 है। अब ये क्या कर सकते हैं, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जैसा हैदराबाद में स्टडी करके मालूम चल रहा है कि ये वेरिएंट हो सकता है कि, मैं डराना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ ताकि आप लोग अपना ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि ये इसी वेरिएंट से उभरा है जो पिछले 4 महीने में हमारे देश की स्थिति बहुत खराब करती है। तो हो सकता है कि ये वेरिएंट इससे भी ज़्यादा थोड़ा घातक हो, और हो सकता है कि ये इम्यून भी एस्केप करे। इम्यून एस्केप करने का मतलब है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि देखिए, दिसंबर तक हमारे देश में पहले वेव से जितना भी लोग इन्फेक्टेड थे, आपको पता है कि पूरे देश में जब ये एंटीबॉडी हमने जब देखा था, आईसीएमआर ने जब टेस्ट किया था, तो बहुत हाई परसेंटेज में लोगों को एंटीबॉडी मिले थे। इसका मतलब बहुत हाई परसेंटेज में लोग इन्फेक्ट हो चुके थे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम हार्ड इम्यूनिटी अटेन करने के करीब हैं और अब हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये म्यूटेंट आया तो वो जितनी भी इम्यूनिटी हम लोगों ने गेन किया था इंडिया में, जितने भी लोग इम्यून हुए थे उस वायरस से, उस सारा इम्यूनिटी स्केप कर गया। यानी कि वो वायरस जो है वो उस इम्यूनिटी को स्केप करके और फिर से उन लोगों को इन्फेक्शन करा दिया, तभी इतना तेजी से इन्फेक्शन फैला। तो इसको बोलते हैं इम्यून स्केप। तो अगर इम्यून स्केप करता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हम बाकी हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर इम्यून स्केप करता है तो ये इंसान पे कंट्रोल करने के बस के बाहर है अभी के हालात में। क्योंकि ये अगर बार बार ऐसे इम्यून स्केप करेगा तो फिर लोग फिर से उतने लोग बीमार पड़ेंगे। तो इस समय जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए अभी मैं बोलूँगा लोगों को कि ये जो उभरती वेरिएंट है, इससे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो और आपको बिल्कुल जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी मैं बताऊँगा आगे, आपको इंडिविजुअल, मैं आप आज ये समझिए कि मैं 1 to 1 आपसे बात कर रहा हूँ। और जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 to 1, और आपसे 1 to 1 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को सुन के और जो भी बताऊँ आप उसको फॉलो करो, क्योंकि आपसे पूरा देश बनेगा। आप नहीं करेंगे तो पूरा देश, आज ये इंडिविजुअल लेवल पे लापरवाही होती है, कभी भी लापरवाही, और इसका असर फिर पूरे देश को दिखता है। तो ये वही हुआ है सेकेंड वेव में, इंडिविजुअल लेवल पे लापरवाही हर आदमी ने किया और इसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। अब पूरी दुनिया भुगतने वाली है तो वो प्रतिबंध लगा देगी आप पे, फिर आप कहाँ क्या करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरत है, आज मेरी बात आप 1 to 1 ले, बिल्कुल आप ये समझे कि मैं आपसे सीधा बात कर रहा हूँ, जो भी आप इस समय मेरे को सुन रहे हैं या फिर आगे आप सुनेंगे। तो इसीलिए ये जो वेरिएंट है ये खतरनाक है। अगर मैं पिछले 1 हफ्ते का डेटा उठा के देखता हूँ हमारे देश में, तो ये एकदम यही दर्शाता है। आप देखिए कि इंडिया जो है अभी ग्लोबली 10.57 एक्टिव केसेस है। इसका मतलब है कि हर 9 में से 1 आदमी इंडिया का बीमार है इस समय पूरी दुनिया में। ये कितना बड़ा रेशियो है, आप देखिए इस चीज़ को। और हर 17वां डेथ जो हो रहा है वो हिंदुस्तान से हो रहा है। इमेजिन कीजिए कि कितना ज़्यादा सिचुएशन ग्लोबली हमारा इस समय खराब है। हमारा रिकवरी रेट कभी एक समय 90% से ऊपर हुआ करता था, आज घट के 86% पे आ गया है। ये डाउनफॉल है। हमारा फैटेलिटी रेट जो है सो अभी मेंटेन है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, 1.2, 1.3, 1.1 ऐसे ही चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है। और अभी जैसे अभी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि ये तो बहुत अंडर रिपोर्टेड है, बहुत जगह तो जो एग्जैक्ट फिगर है वो इससे डबल है या ट्रिपल है। और आपके पास आप सबसे बड़े तो आप सबूत है, आपके आसपास क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। और डबलिंग टाइम देखिए, जो केस है अभी 37 डे हो गया, कितना कम हो गया। और जो डेथ का डबलिंग टाइम है वो 76 दिन, हर 76 दिन में डबल होते जा रहे हैं लोग। तो ये सारा कुछ जो दर्शाता है कि स्थिति अभी हमारी बहुत अच्छी नहीं है। तो अभी हम किसी भी तरीके से हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं। जो वेरिएंट म्यूटेंट है वो भी कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। जो हमारा जो सिचुएशन है वो सब आप वाकिफ हैं। तो अब हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब फिर से मैं वापस आता हूँ कि ये वायरस स्प्रेड कैसे करता है। बहुत बार ही बताया हूँ कि देखिए ड्रॉपलेट्स, आप सबको पता है कि ड्रॉपलेट्स बात करने से, छींकने से जो लोग बीमार हैं उनसे निकलता है, वो फिर हमारे हाथों में या हमारे सरफेस पे कहीं होता है, हमारे हाथ से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो
तो वायरस जब तक लंग में नहीं पहुंचता तब तक वायरस से खतरा नहीं है, लेकिन जब एक बार लंग में पहुंच गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपका जितना भी प्रिवेंटिव मेजर्स है वो किसी काम का नहीं रह जाता, चाहे आप कुछ भी कर ले, जब वो लंग में पहुंच जाएगा तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देगा। और वायरस आपके लंग को एक लंग वायरल फैक्ट्री बना देता है, एक वायरस का फैक्ट्री बन जाता है। और दिखाऊंगा भी आपको उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या परिणाम होते हैं। इसीलिए आपको ड्रॉपलेट्स का ध्यान रखना है। फीकल मटेरियल सबसे पहले मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में ही बताया था, जब भारत सरकार ने इसको माना भी नहीं था, तब मैंने उस समय बोला था कि फीकल मटेरियल से फैलेगा। शुक्र है कि अब एटलीस्ट वो मानते हैं, यूरिन से और एरोसोलिक। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो एरोसोलिक के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये वायरस जो ये मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन तो है ही, इससे तो लोग बच रहे थे या जो भी था, लेकिन अब जो घातक जो ज्यादा हो गया है उसका एक मुख्य वजह है, एक तो म्यूटेंट है ही, दूसरा एरोसोलिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये एरोसोलिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और इसका कैसे कैसे एविडेंस मिला है, ये सिर्फ आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप जहाँ भी हैं इसके अनुरूप, आप चाहे ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप पब्लिक किसी सर्विसेज में हो, जहाँ भी हो, आप इसमें जो भी जानकारी है उसके अनुसार अपने अपने सिचुएशन को वहाँ पे इम्प्रूव करें। डरने के लिए, डराने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आप कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर ये लांसेट में अभी स्टडी किया गया, उन्होंने 10 मुख्य कारण का पता लगाया कि क्यों हो रहा है, और उन्होंने तर्क के साथ ये 10 मुख्य वजह जो है दुनिया के सामने लाया, जो दुनिया मान रही है अब कि हाँ ऐसा हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि सुपर स्प्रेडिंग इवेंट। सुपर स्प्रेडिंग इवेंट किसको बोलते हैं? बड़ी बड़ी जो लोगों का मीटिंग्स होता है, रैलीज होते हैं, जो भी जिस भी तरह का हो, रैलीज होते हैं शादी हो गया, फंक्शन हो गया, या कोई रिलीजियस एग्रीगेशन हो गया, मैं किसी का नाम इन पर्टिकुलर नहीं ले रहा, जो भी जहाँ पे लोग बड़े बड़े तादाद में लोग मिलते हैं, वो सारे वहाँ पे देखिए कि लोग मास्क भी यूज करते हैं और अगर प्रिकॉशन भी लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से जब भी निकल के आते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होती है। तो ये जरूर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है ट्रांसमिशन बहुत हाई है। तो ट्रांसमिशन बहुत हाई होने का जरिया हो सकता है कि शायद एरोसोल से। एरोसोल का मतलब होता है कि जो वायरस का पार्टिकल है हमारे मुंह से हमारे बात करने समय वो निकलता है, और वो ड्रॉपलेट से थोड़ा छोटा होता है। ड्रॉपलेट थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्या होता है, जल्दी से हमारे सरफेस पे अटैच कर जाता है, लेकिन ये एरोसोल काफी देर तक हवा में रहता है। मैं अभी बताऊंगा आपको कितनी देर तक रहता है। दूसरा है कि लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन हो रहा था। तो उन्होंने क्या देखा कि दो लोग आइसोलेशन में हैं, एक ही होटल के दो अलग अलग कमरे में हैं, दोनों लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो इन्फेक्शन है जो दोनों लोगों में फैल रहा था। तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि लंबी दूरी में फैल रहा, और लंबी दूरी में तभी फैलेगा जब भी हवा के माध्यम से जाए। अगर ड्रॉपलेट जमीन पे गिर जाएगा तब तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा, तो वो लंबी दूरी तक तय नहीं करेगा। तो ये जरूर है कि कहीं ना कहीं इसका हवा में ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये एविडेंस मिला। उसके बाद उन्होंने देखा कि एसिम्प्टोमेटिक लोग, बहुत चर्चा होता है इसमें, एसिम्प्टोमेटिक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको एकदम साफ साफ एक चीज बता देता हूँ, अगर आप किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं तो आप अपने आप को कोरोना पॉजिटिव मान लीजिए, भले आप में सिम्टम हो या ना हो, आप मान लीजिए, और कोरोना पॉजिटिव का जो प्रोटोकॉल होता है आप उसको फॉलो कीजिए। आज से कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए किसी को, प्लीज। अगर इसमें अभी आप देर करेंगे तो पता नहीं सिचुएशन और बहुत खराब हो जाएगी। तो कोई भी लोग जिनको थोड़ा शक भी होता है कि मैं किसी को कोविड पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आया हूँ, तो प्लीज आप अपने आप को कोविड मान लीजिए पॉजिटिव। मेरे पास अभी जितने केसेस आए हैं उसमें 90% केसेस ऐसे थे कि वो किसी के आदमी के संपर्क में आए जिसको कोरोना पॉजिटिव था, और वो लापरवाही बरते और अपने पूरे घर में सबको कोरोना परोस दिए। एकदम मेरे पास अपने जितने एविडेंस है उसमें 90% केसेस ऐसे थे। तो एक आदमी जो एसिम्प्टोमेटिक है, वो भले उसका RT-PCR नेगेटिव भी आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वायरस लोड नहीं है। हो सकता है कि उस समय उसमें वायरस लोड कम हो, 2 दिन 4 दिन के बाद उसमें वायरस लोड अगर आ जाएगा और वो किसी तरीके से फिर लोगों के संपर्क में रहेगा, तब तो वायरस फैलेगा ही। और पूरी दुनिया भर में जब इन्होंने स्टडी किया तो करीब 33 से 59% जो ग्लोबल ट्रांसमिशन था ये एसिम्प्टोमेटिक लोगों की वजह से हुआ। तो इसीलिए एकदम फ्लैट रूल है, चाहे RT-PCR का रिजल्ट कुछ भी हो, आप कभी भी किसी भी सस्पेक्टेड के संपर्क में आए हैं तो प्लीज आप अपने आप को अलग करें, और तब तक अलग करें 2 से 3 हफ्ता। 2 हफ्ता का टाइम तो है, लेकिन आप बफर पीरियड 1 हफ्ता का लेके चले।
और अगर उस 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपको कुछ सिम्टम नहीं है, तभी आप अपने आप को कोरोना फ्री माने। अगर कुछ भी सिम्टम डेवलप होता है तो फिर तो आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। तो ये सारा कुछ बोलने से ज्यादा होता है, बोलने से एरोसोलिक पार्टिकल जनरेट होते हैं। उसके बाद देखा गया कि इंडोर में कोरोना का ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हो रहा था, कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हो रहा था बाहर के अपेक्षा में। उसके बाद उन्होंने देखा कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, जो अस्पताल में इन्फेक्शन होता है। उन्होंने देखा कि अस्पताल में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, जबकि आप देखिए तो सबसे ज्यादा एहतियातन तो अस्पताल में बरता जाता है। लोग पीपीई किट पहनते हैं, मास्क लगा के रहते हैं, सब तरह का एहतियात रखते हैं, लेकिन फिर भी वहां ज्यादा इतना इन्फेक्शन फैल रहा था। तो ये सारा कहीं ना कहीं बता रहा था कि ये जो है सो कहीं ना कहीं एरोसोलिक मोड से हो रहा था, और जितना भी प्रिकॉशन अभी हम ले रहे थे ये सफिशिएंट नहीं था। इवन पीपीई किट भी जो है वो पूरी तरीके से आपको एरोसोलिक मोड से ट्रांसमिशन से बचाता। और आपको याद होगा कि अभी भी बहुत सारे लोग फेस शील्ड यूज करते हैं, अंदर मास्क नहीं लगाते। तो अगर आप फेस शील्ड यूज करते हैं और ये एयर से ट्रांसमिशन हो रहा है, तब तो ये आपने कुछ नहीं किया, तब तो आप खुला इन्विटेशन दे रहे हैं वायरस को। और ये अस्पताल में और जो लोग टेस्ट करते हैं, बहुत जगह मैंने देखा जो पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, वो सारे लोग फेस शील्ड यूज करते थे, क्योंकि उनको ज्यादा देर तक मास्क में उनको प्रॉब्लम होता था। तो अब उसकी वजह से ये फैल गया ये सारा कुछ। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप थोड़ी देर हाइपोक्सिया का सिचुएशन बर्दाश्त कीजिए, या फिर आप इन्फेक्शन मोल लीजिए। तो अननोइंगली हुआ, ये लोग जानबूझ के तो नहीं किए होंगे, लेकिन अननोइंगली ये सब होता रहा। और आप देखिए हेल्थ केयर वर्कर ज्यादा बीमार हुए और ज्यादा ट्रांसमिशन हॉस्पिटल में हुआ। उसके सबसे जो आश्चर्यजनक बात थी कि ये जो वायरस जो है ये हवा में 3 घंटे तक पाया गया। इन्होंने टेस्ट किया होगा, और इन्होंने टेस्ट कहाँ पे किया कि देखा कि जो पेशेंट का कमरा होता है, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका गाड़ी उसके कार में, उन्होंने देखा तो उसमें 3 घंटे तक ये वायरस हवा में उनको पाया गया। और करीबन करीबन 1.1 आवर, 1 घंटा 10-15 मिनट के बाद वो वायरस जो है उसमें से आधा, मतलब हाफ लाइफ उसका 1.1 आवर था, मतलब जितना कंसंट्रेशन था उसका हाफ सेटल हुआ, मतलब स्टिल हाफ वाज स्टिल देयर। तो वो आपके लिए, आप सोचिए कि आप सोच रहे होंगे ऐसा कि कोई खुला जगह है, लेकिन अगर वहाँ कोई इन्फेक्टेड आदमी आया है और अगर वो छींक के या खांस के चला गया है, तो आप तो सोच रहे होंगे कि खुला जगह है, चलो यहाँ पे मास्क नहीं लगाते हैं। लेकिन वहां जाएंगे और आपको वहां इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां तो वायरस हवा में मौजूद है इतनी देर तक। तो ये सारा कुछ हो रहा था, अब लोगों को पता नहीं चल रहा था, और ये सारा जब विस्फोट हो गया तो ये सारा नतीजा सामने आ रहा है। उसके बाद जो इसका जो पुख्ता प्रमाण मिला कि हॉस्पिटल में जो एयर फिल्टर्स होते हैं ना, एयर फिल्टर्स या बिल्डिंग में जो एयर फिल्टर्स है उसमें उन्होंने वायरस को चेक किया, तो वहां से वायरस मिल गया। एयर फिल्टर से वायरस मिल रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि जब तक हवा में वायरस काफी देर तक नहीं रहेगा तब तक वो फिल्टर सक नहीं करेगा। अगर ड्रॉपलेट से जाएगा तो वो तुरंत नीचे गिर जाएगा, तब तो फिल्टर उसको सक नहीं करेगा। तो एकदम एकदम पुख्ता प्रूफ था कि ये एयर फिल्टर में है, तो इसका मतलब है कि वायरस एयर मोड से ट्रांसमिट हो रहा था, जो कि हमें पता नहीं था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो अलग अलग जानवर को दो अलग अलग केस में रखे, एक में इन्फेक्टेड, एक में दूसरे में नॉन इन्फेक्टेड, और उस दोनों को क्या किया, सिर्फ एयर डक्ट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखा कि उन्होंने कि जो इन्फेक्टेड से नॉन इन्फेक्टेड में भी इन्फेक्शन फैल गया। तो अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये एयर डक्ट से फैल रहा, कोई तो जरिया नहीं था। तो ये जो सारे सबूत है ये पूरे के पूरे ये बताते हैं, और ये आप इसको जो करंट स्थिति आप उससे जोड़ के देख लीजिए कि ये विस्फोट कैसे हो गया अचानक से। ये तो विस्फोट ही है, सुनामी, ये विस्फोट हुआ अचानक से, इतने कम दिनों में इतने ज्यादा केसेस बढ़ ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पिछले 10-15 दिनों में लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं। तो जरूर इसका पीछे ये वजह तो एकदम पुख्ता वजह है ये। तो इसीलिए आपको अब जितना आपने अभी तक प्रिकॉशन लिया है उससे ज्यादा प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा, खासकर ये एरोसोलिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। तो आपको एक चीज तो पक्का है कि आपको सांस से, इनहेलेशन से आपको एरोसोल को रोकना पड़ेगा। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है बहुत सारे डॉक्टर्स अब आपके इसके बारे में बता रहे हैं कि आपको वेंटिलेशन करना पड़ेगा। तो जहाँ भी आप हैं, चाहे आप एसी कमरे में हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी है, जहाँ भी आपको लगता है कि हमारे आसपास लोग आए हैं और गए हैं, तो आपको उस पूरे माहौल को, उस पूरे घर को, उस पूरे सराउंडिंग को आपको पूरा हवा से सर्कुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एसी कमरे में भी आपको बंद करके, पंखा चला के, खिड़की खोल के आपको थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन आपको वायरस से बचना है तो आपको करना पड़ेगा।
और जो हाई रिस्क एरिया है जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या फिर जहाँ पे कॉरिडोर्स वाले एरिया होते हैं, ऑफिस वाले लोग के लिए बता रहा हूँ, जहाँ पे कॉरिडोर्स वाले एरिया होते हैं, जहाँ लोग आते जाते हैं, एग्जिट पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट होता है, उस जगह पे अगर हो तो आपको एयर फिल्टर्स भी लगाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा है लोगों का, खासकर हॉस्पिटल्स वगैरह में आपको ये ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। और क्राउडिंग तो आप भूल जाइए, अपनी ज़िंदगी से क्राउडिंग वर्ड अब आप डिलीट कर दीजिए। क्राउड ऐसा चीज है जो आपको अभी बिना वजह आपको लगेगा कि क्या मेरे ऊपर आफत आ गया। ये इतना बड़ा ये है, आप शादी भूल जाइए, मत जाइए। शादी में नहीं जाएंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन शादी में जाएंगे तो जान से जाना पड़ सकता है, इतना खतरनाक है। मत जाइए थोड़े दिन, सारा कुछ रुक सकता है। अगर हम सब आदमी मिलके कोशिश करें तो अभी भी इसको रोका जा सकता है। और इतना सबूत आपको दिया मैंने, अब इससे ज्यादा सबूत जानने के बाद भी अगर लोग नहीं अगर एहतियात करेंगे तो अब तो फिर कौन आके, कोई आकाशवाणी ही होगी तभी आप रुकेंगे, वरना अब तो लोगों को समझना चाहिए कि करना पड़ेगा। कल आप देखिए एक वीडियो में कैसे 10 बजे के बाद लोग इतना ज्यादा शादी में एक्सक्यूज दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो वो तो बिल्कुल गलत है। आप 50-100 लोगों को लेकर के बैठे हुए हैं और कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ, सिर्फ उसका एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ, कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी तरह का फंक्शन है, अभी क्या पड़ी है, आपको कुछ करना है, आप इंडिविजुअली 1-2 लोग जिनकी जरूरत है आप उनके साथ कर लीजिए, लेकिन प्लीज क्राउडिंग को रोकिए, सबसे बड़ा फैक्टर है क्राउडिंग। और उसके बाद इंडोर टाइम में आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, जैसे कि खासकर जैसे मैंने बताया कि क्लिनिक्स हो गए, कॉमन प्लेसेस हो गए, कॉरिडोर्स हो गए, ऐसी जगह में आपको थोड़ा आप सावधानी रहना पड़ेगा कि आप इंडोर भी हैं तो आप ये मत समझिए इसीलिए सरकार कह रही है कि इंडोर में भी मास्क का यूज कीजिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिकल मास्क आपको जहां तक हो आपको यूज करना चाहिए। आपको दिखाता हूँ अभी मैं कि कैसे मास्क भी यूज करते हैं, क्वालिटी क्या होता है, और आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्वालिटी पे, और कि कैसे मास्क का क्वालिटी होना चाहिए और कैसे फिट होना चाहिए। देखिए ये मेडिकल अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैं देखता हूँ कि लोग मास्क सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरा वीडियो दिख रहा है ना डॉक्टर साहब? Yes, yes, sir. Yes, sir. ये देखिए ये मास्क, ये मेडिकल मास्क है। मेडिकल मास्क में ये 3 लेयर मास्क होता है, ठीक है। इस मास्क में हमेशा ऊपर में एक वायर होता है, ये देखिए ऊपर ये वायर, मैं देखा हूँ लोग इसको उल्टा पहनते हैं, ठीक है। आपको ये वायर वाला पोर्शन ऊपर करना, आप चश्मा लगाते हैं, आप चश्मा निकालिए, आप इसको यहाँ पे ले जाइए, ठीक है, और पहले आप इसको फिक्स कीजिए। ये फिक्स करने के लिए दिया जाता है कि आप इसको फिक्स करें अपने चेहरे पे, इसको फिक्स कीजिए पूरी तरीके से, अच्छे से इसको फिक्स होना चाहिए। उसके बाद आप अपना चश्मा लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इधर साइड से भी, इधर साइड से भी। तो ये मास्क आपको सीधा पहनना है, उल्टा नहीं पहनना। उल्टा पहनेगा तो ये ऊपर से ये नाक में खुला रहता है, ये देखिए ऊपर खुला रहता है, तो आपका वायरस जाने का खतरा पूरा का पूरा बना हुआ रहता है। उसके बाद हम आते हैं दूसरा जो मास्क हमारे पास N95 मास्क है। N95 मास्क हमको ऐसा मास्क यूज करना है जिसमें कि ये ना हो, वाल्व ना हो, प्लीज। ये वाल्व अगर खुला हुआ है तो ये मास्क किसी काम का नहीं है, तो आपको ये वाल्व वाले मास्क आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है। और अगर आपके घर में इस तरह का कोई कपड़ा का मास्क है तो अभी इसको कैंची उठा के काट के कूड़े में डाल दीजिए, अभी इमीडिएट, बिना कुछ सोचे हुए। ये मास्क इंडिया में सबसे बड़ा कारण है इस तरह का मास्क इंडिया में इतना विस्फोट होने का। लोग क्राउडेड प्लेस में ये फैशन मास्क पहन के जाते हैं, कहीं भी बाहर निकले अपने कपड़े से मिलता जुलता ये मास्क पहन के जाते हैं कि हमारे कपड़े से मैच करता है। ये कितना भी मल्टी लेयर्ड कपड़ा हो, मैं आपको बहुत छोटा सा एक बताता हूँ, आप इसमें पानी डाल के देखिए, आपको 10 सेकंड के बाद ये पानी से ये गीला हो जाएगा। कोई भी आपके पास ऐसा मास्क है उसको उठा करके अभी आप डिस्कार्ड कर दीजिए इमीडिएट, कोई इफ बट कुछ नहीं, आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। और मेडिकल मास्क और ये N95 मास्क यूज आपको करना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे क्वालिटी का ध्यान रखना है और कैसे वो होना चाहिए। हैंड वॉशिंग करना बहुत सब लोग को पता है, ठीक है। दूरी मेंटेन करनी है, हाइजीन प्रैक्टिस करना है, और वेंटिलेटिव मेजर जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि N95 मास्क का जो साइज होता है वो 300 माइक्रोन होता है, तो वायरस को कैसे रोकता है, जबकि वायरस का साइज जो है तो वो वेरी करता है, उससे छोटा भी होता है। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि ये मास्क कैसे काम करता है, और बहुत सारी जानकारी लोगों के बीच में नहीं होती है, लोग एकदम ब्लाइंडली जो सुनते हैं उसके पीछे टूट पड़ते हैं। देखिए वायरस जो होता है कभी भी फ्री पार्टिकल की तरह नहीं होता। मैं अभी आपको क्या बोला, एरोसोल या ड्रॉपलेट, तो एरोसोल भी छोटा पार्टिकल होता है, वो छोटा पार्टिकल कितना भी होगा तो वो करीब करीब 1000 माइक्रोन का हो जाता है, और ड्रॉपलेट्स होगा तो इससे भी बड़ा हो जाता है।
तो ये 3 माइक्रो ये सुनने से समझो 3 माइक्रोन है, ठीक है, इसका पोर, और ये 1000 माइक्रोन है, 1 माइक्रोन है, तो ये आराम से रुक जाएगा इससे। पहली बात, आराम से रुक जाएगा इसमें तो, क्योंकि वायरस कभी भी फ्री पार्टिकल वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, तो उसको तो चाहिए, वो कुछ ना कुछ निकलेगा, तो कुछ प्रोटीन होगा उसके साथ, या उसके साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, वाटर पार्टिकल्स होंगे, कुछ ना कुछ होगा, तो वो इसके पोर से आराम से रुक जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वायरस लोग समझते हैं कि सीधा आता और ऐसे घुस जाता है, नहीं। जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि ये जो इतने छोटे पार्टिकल होते हैं उनका ब्राउनियन मोशन होता है, वो जिगजैग तरीके से जाते हैं। तो जब जिगजैग तरीके से जाते हैं तो वो वायरस जो है से इसका बाहर से इसका इंटरेक्ट होके और उलझ इसमें फंस जाता है वायरस। और इस तरह के मास्क में एक इलेक्ट्रिक चार्ज मेम्ब्रेन होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि वो वायरस को अपनी तरफ ट्रैप कर लेगा, उसको पास नहीं करने देगा, उसको ट्रैप कर लेगा। तो इसीलिए इस तरह के मास्क आपको बचाते हैं, और ये आज तक हम लोग इसको लैब में इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर्स इतने टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। देखिए कितना इन्फेक्शन नहीं होता, कभी नहीं होता। तो डेफिनेटली इस तरह के मास्क ये साइंटिफिक तरीके से बनाए होते हैं। जो बनाते हैं उससे पहले पूरा इसका स्टडी करते हैं कि कितने साइज होना चाहिए और किस तरह का वायरस से ये रोक सकता है, वो सारा कुछ स्टडी करके इस तरह के मास्क को बनाया जाता है। अब लोग पूछते हैं कि इसको दोबारा यूज करना है कि नहीं करना है, तो नहीं करना है। मैं पहले बोलता था कि देख के, लेकिन अब सीधा है कि नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब वायरस इतना फैल चुका है, आप कहीं भी जाएंगे तो अब बाहर एक बार जाते हैं और आते हैं तो 90% चांस है कि इसमें वायरस लगा होगा, और एक बार जब इसके चार्ज पार्टिकल में वायरस लग जाता है तो ये फिर मास्क किसी काम का नहीं होता। आपके घर में आप समझो कि एक वायरस का जो है सो एक भंडार आ गया, तो अब आप इसको क्या करना आपको अच्छी तरीके से पता है, इसको डिस्कार्ड करना और इसको यूज नहीं करना। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि इसको कब इस्तेमाल करना है और इसको कब इस्तेमाल करना है। तो इसको तब इस्तेमाल करो जब आपको लगता है कि आप हाई रिस्क एरिया में नहीं है। ठीक है, अब आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या हाई रिस्क एरिया है, और इसको तब इस्तेमाल करना है 95 को जब आप हाई रिस्क, आप हॉस्पिटल जाते हैं, वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, किसी को देखने के लिए जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, या कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे डिजीज का प्रेवलेंस ज़्यादा है, तो आपको जाहिर सी बात है कि आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें। बहुत लोग कहते हैं कि दोनों कर सकते हैं, तो दोनों आप पे डिपेंड करता है कि दोनों से करने से थोड़ा ऑक्सीजन की कमी होती है डेफिनेटली। तो अगर आपको हाइपोक्सिया आप बर्दाश्त कर सकते हो तो आप करो, वरना नहीं कर सकते हो तो आप N95 में भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, बशर्ते ऐसी जगह पे आपको ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करना चाहिए। अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए सीधे सीधे लोगों से, ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली फेस करके आप डायगनली बात कर सकते हो, कम से कम इंटरेक्शन करें। खासकर जो लोग कहते हैं कि लिफ्ट में, तो लिफ्ट में आपको बिल्कुल 1-2 लोग जाए, लिफ्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, सीढ़ियों से चले, ज़्यादा आपके अच्छे लिए, आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और लिफ्ट में बिल्कुल भी बात ना करें, बिल्कुल भी बात ना करें। अगर आप लिफ्ट में बिल्कुल बात नहीं करेंगे और कोई छींकेगा नहीं और कोई कफिंग नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वायरस जो है रिलीज नहीं होगा। ठीक है, और लिफ्ट में अगर हो सकता है तो उसको पंखा का चला के रखें, और लिफ्ट को आप एक फिक्स टाइम के लिए आप लिफ्ट को खोल करके उसको वेंटिलेट करें। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आता हूँ मैं इसके डिजीज और सिम्टम्स के बारे में और इसके पूरे डिजीज के बारे में, और इसके अभी जो ट्रीटमेंट है क्या है, सारा कुछ इसके बारे में बताता हूँ, और नई उम्मीदें जो अभी आ रही हैं हमारे सामने वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं जो इसका कॉमन सा सिम्टम्स। सबको पता है कि फीवर होता है, थोड़ा ड्राई कफ है, थोड़ा आपको थकान लगेगा, दर्द महसूस होता है गले में, लोग को डायरिया भी होता है। ठीक है, सिर दर्द होता है, और आपको पता है कि स्मेल भी चला जाता है बहुत सारे केसेस में, स्किन में भी रैशेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉमन है, लेस सिम्टम्स है। सीरियस सिम्टम्स क्या होता है कि आपको ब्रीदिंग में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, आपको चेस्ट में पेन होगा, भारीपन लगना शुरू हो जाएगा, हो सकता है कि आपका बोलने का भी क्षमता और मूवमेंट भी जो है आपका थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, तो ये सारे सीरियस सिम्टम्स हैं। लेकिन अभी जो नए और भी क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोगों का ब्लड शुगर वेरी कर सकता है। ठीक है, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकता है, बहुत सारे लोग का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, और क्यों ये होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसका कैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करता है। तो देखिए, ये जो वायरस है
सबको पता है कि इस वायरस में स्पाइक प्रोटीन है और ये जो हमारा एस रिसेप्टर है, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर है और ये जो है सो सबसे ज़्यादा लंग में पाया जाता है। तो वायरस जब लंग में एंटर करता है, जब लंग में एंटर करता है तो इस रिसेप्टर के जरिए एंटर करता है और इस रिसेप्टर से एंटर करने के लिए जो स्पाइक प्रोटीन है ना, इस स्पाइक प्रोटीन को प्राइम करता है एक हमारा सेल में हमारा दूसरा सीरीन प्रोटीएज होता है जिसको TMPRSS2 कहते हैं। तो ये दोनों का रोल है सेल में अंदर घुसने के लिए, ये प्राइमिंग करता है और ये बाइंडिंग करता है। तो ये दोनों का रोल होता है, ये रिसेप्टर का भी और ये सीरीन प्रोटीएज का भी, जिसके जरिए ये वायरस यहाँ इंटरेक्ट करता है। आप इसको देखिए इस तरीके से, ये इंटरेक्ट करता है और फिर हमारे ये देखिए कैसे हमारे सेल के अंदर ये घुस जाता है। तो ये जब हमारे सेल के अंदर घुस जाता है तो ये सीधा सीधा इसका डेडली इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक ये तरीका है, ये सीधा घुस जाएगा और ऑर्गन को डैमेज करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये क्या करता है, ये रिसेप्टर का एक्सप्रेशन को कम कर देता है। तो इसकी वजह से इससे संबंधित जितने भी पाथवे हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका किडनी में इंजरी हो जाएगा, लिवर में इंजरी हो जाएगा, कार्डियक इंजरी, ये सारा कुछ होने लगता है। तो इसीलिए किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और कार्डियक इंजरी फंक्शन टेस्ट, ये सब इसीलिए आपको डॉक्टर बोलते हैं करवाने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो स्टेज जो प्रोग्रेशन का होता है वो हमें सीरियसनेस की तरफ चला जाता है, वो सीवियर हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया एक इन्फेक्शन, ये जो वायरस है अभी तक मैंने बताया कि एक इन्फेक्शन हो गया। अब ये इन्फेक्शन के बाद क्या, इससे निमोनिया सिचुएशन जैसा हो जाएगा आपको। लेकिन इसके बाद ये क्या करता है, जो लंग के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो उसको डैमेज करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि थ्रोम्बिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, डी डायमर बढ़ जाता है, तो क्लॉटिंग शुरू हो जाता है जिसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, इसके पीछे पूरा साइंस है कि कैसे ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। मैं उतना डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरा खोज जो था, मेरा रिसर्च जो था वो इसी पे है। और मैंने अभी 2 दिन पहले RBI को एक वेबिनार दिया था, तो उसमें मैंने उनको पूरा साइंस समझाया था। जो ये साइंस समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये जो ब्लड वेसल डैमेज होता है, इस डैमेज होने की वजह से क्या होता है, एंटीकोगुलेंट की कैसी कमी हो जाती है और उसकी वजह से जो है सो कैसे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये एक मिसिंग है जो मैंने समझाया है अभी, और इसके लिए मैंने ड्रग भी बनाया है, खोजा था एक दूसरे डिजीज में। तो उसको मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि अगर वो ड्रग डेवलप हो तो उससे हम कोविड का उपचार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे 2 स्थिति उत्पन्न हो जाता है। एक तो पहले आपका ये थ्रोम्बोसिस कराएगा और दूसरा ये इन्फ्लेमेशन कराएगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। तो आप देखते हैं कि आपका WBC काउंट बढ़ा हुआ रहता है, बहुत बढ़ जाता है लोगों में, ठीक है। और दूसरा है कि ये साइटोकाइन एक प्रोटीन है, वो रिलीज कराता है, क्या करता है, इम्यून सेल अपने आप को फिर एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये एक सेल रिलीज करेगा, वो दूसरे इम्यून सेल को एक्टिवेट करेगा, तो ये एक तरह से ऑटोक्राइन सिस्टम बनता जाएगा और फिर एक्टिवेट होते 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 जिसको हम कहते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म। तो इससे क्या होता है कि फिर ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये घातक है। तो ये जो स्थिति ये सारा उत्पन्न हो जाता है, तो इस सिचुएशन को डील करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर ये सीवियर केसेस में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए फिर हम डी डाइमर चेक करते हैं, फेरिटिन चेक करते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेट चेक करते हैं, CRP लेवल चेक करते हैं और साइटोकाइन के लिए फिर हम IL-6 चेक करते हैं। अभी मैंने TNF अल्फा प्रपोज किया, लेकिन अभी तक शायद इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ पेशेंट्स के सैंपल में कराया है, तो उसमें भी ये बहुत एलिवेटेड है। तो अभी मैं बताऊंगा कि इससे क्या फ़ायदा हो, इसका हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और फिर हम प्रोकैल्सिटोनिन भी टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वाइट ब्लड सेल का काउंट बढ़ा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जबकि होता क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। वो होता है ये जो डैमेज होता है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे ना ये ब्लड वेसल्स में कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारा जो बॉडी के अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट है ना, उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से फिर इम्यून सेल एक्टिवेट भी हो जाते हैं। तो हमको ये भी एक देखना बहुत ज़रूरी होता है PCT करवा के कि रियली वाकई में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं। अब लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट में क्या गलतियाँ होती हैं कि ये टेस्ट बिना करवाए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दे दिए जाते हैं, बस एज्यूम कर लिया जाता है कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है। ये सब मैं फिर अभी आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के ये पूरी स्थिति को जानने के लिए फिर हम इस तरह के इतने सारे टेस्ट को हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए आपको 3 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है इसके केस में, कि पहले आपको निमोनिया होगा,
ठीक है। निमोनिया प्योरली जो वायरल का इन्फेक्शन है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन इसका हमको जांच करके ही हमको एंटीबायोटिक देना चाहिए। किसी किसी में दोनों होता है, किसी किसी में सिर्फ वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद थ्रोम्बोसिस जो मैंने बताया, ठीक है। तो हमको तो पहले वायरल लोड निमोनिया को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। उसके बाद अब थ्रोम्बोसिस अगर एक बार इवेंट चालू हो गया तो वायरस का लोड अगर कम भी होता है लेकिन थ्रोम्बोसिस चालू हो रह सकता है। और थ्रोम्बोसिस जब होगा, जब क्लॉटिंग होगा, जो थ्रोम्बस बनेंगे, तो जो आपके जो लंग सिटी करते हैं उसमें आपको लिखा होता होगा कि ग्लासी पैचेज है, तो वो सारे क्लॉटिंग होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम थ्रोम्बी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर वायरस का लोड कम भी है लेकिन अगर ये डी डायमर लेवल बढ़ा रहेगा तो आपको ये थ्रोम्बोसिस होता रहेगा और उसकी वजह से आपका ये कैपिलरी ये रप्चर होगा, फ्लूइड का लीकेज होगा, तो ऑक्सीजन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उस समय आपको बहुत डॉक्टर्स को बहुत समझना ज़रूरी है कि क्या पेशेंट का क्या कंडीशन है। तो उस समय ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एंटीवायरल ड्रग देते ही रहे। आप एंटीवायरल ड्रग रोक करके और सिर्फ आप डी डायमर को कंट्रोल करेंगे तो वो पेशेंट रिकवर हो सकता है। इसीलिए अभी मैं बताऊंगा आगे कि आपको हर एक केस डिफरेंट होता है, हर एक केस का क्लिनिकल चीज़ आपको देखना होता है। और मैंने खुद अभी मेरे पास से बहुत सारे केसेस, लकीली वो डॉक्टर्स से मेरी बात हो रही थी, तो हम लोगों ने बड़े अच्छे से मैनेज किया, ठीक है। बहुत सीवियर पेशेंट थे और उनको हमने वापस बिल्कुल रिकवर हम लोगों ने कराया। एकदम ओवर ट्रीटमेंट नहीं किया, एकदम केयरफुली क्लिनिकल चीज़ें देख देख के हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट किया। और थैंक गॉड वो डॉक्टर समझ रहे थे मेरी बात को, सुन रहे थे और मेरी बात से सहमत थे, और फिर उस वजह से हमने ट्रीटमेंट किया धीरे धीरे और वो सारा कुछ रिकवर हुआ। मैं आपको बताऊंगा आगे। और तो तीसरा जो है इसमें हाइपर एक्टिवेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, तो इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए फिर हमको स्टेरॉइड और ये चीज़ों की देनी पड़ती है और इसको हम फिर मेजर करने के लिए IL-6 का लेवल हम चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लंग से निकल करके ये शरीर के सारे ऑर्गन में फैल जाता है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो क्या होता है कि इन जो ऑर्गन्स है, बॉडी का जो ऑर्गन्स है ना, उसमें भी एस रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये वहां से निकल के इधर भी फैल जाता है। ब्रेन में इन्फेक्ट कर सकता है, रीनल किडनी में मैंने बताया कि किडनी में इंजरी करा सकता है, लीवर में। अब लीवर में क्या हो रहा है, क्यों ये ज्यादा वायरुलेंट अभी मैं बोल रहा था, कि लीवर में क्या कराता है, लीवर में सीधा इन्फेक्ट करके और जो लीवर का जो बाइल डक्ट है उसमें इन्फेक्शन करवा देता है और जिसकी वजह से आपको जॉन्डिस हो जाएगा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों बढ़ जाएगा, तो पेशेंट में जॉन्डिस हो जाएगा। तो ये इसीलिए ये ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। तो ये सारा चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह का कोई भी सिम्टम है, पेट की गड़बड़ी आपको पहले ही पता है, थ्रोम्बोसिस मैंने पहले बता दी। अब थ्रोम्बोसिस होगा तो अगर क्लॉटिंग हो रही है तो अगर ये हार्ट में चला गया तो आपको स्ट्रोक भी करवा देगा, तो बहुत खतरनाक है। और हार्ट का जो बीटिंग है वो एरिथमिक हो जाएगा, वो जो रिदमिया है वो जो मेंटेन नहीं कर पाता है हार्ट उस वजह से, ठीक है। अब एंडोक्राइन का समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला था कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये क्या करता है, ये वायरस जो आपका इंसुलिन जो बनाता है, जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स, उसको सीधा अटैक कर देता है। तो आपका इंसुलिन का जो है लेवल जो है वो घटना शुरू हो जाता है और वो फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाता है। तो उस हिसाब से हेल्दी आदमी में फिर ब्लड लेवल उसको अचानक से लगता है कि मेरे को डायबिटीज़ कैसे हो गया, लेकिन हालांकि वो ये वायरस की लोड की वजह से होता है। और वो फिर जब रिकवर कर जाएगा तो वो फिर मेंटेन करने लगता है। तो इसीलिए आपको पूरा रिकवरी पे पूरा ध्यान देना होगा कि कैसे हमको करना है और चीज़ों को समझ के बहुत केयरफुली एक एक सिम्टम्स को देख करके हमको पेशेंट टू पेशेंट हमको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद स्किन में आपको पता है कि रैशेस हो जाते हैं, ये हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि जितना भी अभी इंडिया में क्लासिफिकेशन है, जो देखिए एम्स का जो क्लासिफिकेशन है, ICMR का क्लासिफिकेशन है, और जो सिम्टम जो साइंटिफिकली इस बेसिस पे मैंने आप लोग के लिए चीज़ों को आसान करने के लिए मैंने 3 क्लासीफाई कर दिया है। इससे आपको बड़ी आसानी होगी अपना स्थिति को समझने की, मेरी स्थिति कहाँ है। अगर आपको अगर आप कोविड इन्फेक्शन अगर हो जाता है, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो आप पैनिक में ना आए कि आप घबराए नहीं कि अरे कोविड हो गया मैं क्या करूं, ठीक है। आराम से पहले अपने आप को स्थिर करें और अपनी स्थिति को पहले आप समझें। आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में आपका पहले सिम्टम फॉल करता है। माइल्ड में आपको हल्की सी खांसी होगी, स्नीजिंग होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, लेकिन आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये है तो आपको मान के चलना है कि आप माइल्ड है। तो माइल्ड के लिए फिर क्या करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर ये सिम्टम इससे ज़्यादा अगर एग्रेवेट करता है, अगर हेवी कफिंग है,
आपको फीवर एकदम परसिस्टेंट रह रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो उस समय फिर आपको क्या करना है कि आपको रेस्पिरेशन रेट अपना मॉनिटर करना है, ठीक है? तो आपके पास ऐसा ऑक्सीमीटर होना चाहिए जो दोनों मॉनिटर कर सके, आपके ऑक्सीजन का भी लेवल मेंटेन करे और आपका रेस्पिरेशन का भी लेवल आपको मेंटेन करे। अगर रेस्पिरेशन रेट अगर 24 से बढ़ रहा है और आपका ऑक्सीजन लेवल 90 टू 93 के बीच में रह रहा है, तो आप मॉडरेटली सिक हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ-साथ आपको मैं अभी आगे बताऊँगा टेस्ट के बारे में, जो लंग का टेस्ट है उसको भी करवा के हमको देखना ज़रूरी होता है। और फिर उसके स्कोरिंग के आधार पे मैं बताऊँगा कि कौन-सा माइल्ड होता है, कौन-सा मॉडरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी पहले लिख दिया कि अगर स्कोरिंग 1 से 25 के आधार पे किया जाता है, तो अगर 8 से 17 के बीच में अगर आप फॉल कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब कि आप में मॉडरेट इन्फेक्शन है और आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद आता है सीवियर। तो सीवियर में ये सारा सिम्पटम्स होगा, लेकिन सिचुएशन थोड़ी-सी और ज़्यादा खराब हो सकती है। आपका रेस्पिरेशन रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, 30 के करीब होगा, 30 से ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? आपको बेचैनी ज़्यादा महसूस होने लगेगी, ठीक है? और आपका जो लंग इन्फेक्शन है, वो डेफ़िनेटली ज़्यादा होगा, तभी आपको ये सारे सिम्पटम होगा, क्योंकि लंग इन्फेक्शन मैंने बताया ना, लंग इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, फिर आपका ब्लड वेसल्स में रप्चर ज़्यादा होगा, तो फिर आप ऑक्सीजन मेंटेन करना उस स्थिति में आपको मुश्किल पड़ सकता है। तो वो आपका सीवियर कैटेगरी के आप में आ गया, तो आपको आईसीयू में या फिर इस तरह से आपको वेंटिलेटरी सपोर्ट भी या फिर बाइपैप सपोर्ट की भी आपको इंटेंसिव ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, वो आपको देने ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको परेशान तो है, कोविड है तो है। अब आपको करना कोविड है तो आप इसको 1 मिनट में आप नहीं भगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताया कि आप बिल्कुल पहले ठंडे दिमाग से अपनी स्थिति को समझें और फिर आप रिस्पॉन्ड करें, ठीक है? आप माइल्ड की स्थिति में हैं और आप सीवियर की तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है उससे। आप हॉस्पिटल में भाग रहे हैं, आपको हॉस्पिटल हो सकता है कि उस समय हॉस्पिटल को जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अफ़रा-तफ़री मच जाता है, ठीक है? तो आप उस स्थिति को सँभाल सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको कैसे अपनी स्थिति को समझना है और फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है। अब आपको देखिए सिम्पटम डेवलप होता है या फिर आप किसी के कॉन्टैक्ट में हैं, तो आपको सबसे पहले कि आपको डायग्नोज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हम मेरा कोविड डायग्नोसिस हुआ है कि नहीं। तो आपको कोविड डायग्नोसिस के लिए सबसे जो रिलायबल टेस्ट है, आपको कोविड आरटी-पीसीआर करना होगा, ठीक है? जैसे ही आपको माइल्ड सिम्पटम होता है, आप तुरंत आरटी-पीसीआर कराएँ और अगर उसमें जो सीटी वैल्यू आता है, उसको हम कोरिलेट करते हैं डिजीज़ की सीवियरिटी से। यानी कि वायरस के, तो सिटी वैल्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वायरस। जैसे वायरस का लोड जितना ज़्यादा होगा, ये आरटी-पीसीआर में क्या होता है कि हम इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एम्प्लीफाई करते हैं, हर एक साइकिल वाइज एम्प्लीफाई करते हैं। तो अगर शुरुआत में अगर जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा है तो वो जल्दी एम्प्लीफाई हो जाएगा, तो उसको 25 साइकिल की तक वो पहुंचने से पहले ही वो एम्प्लीफाई होकर बड़ा सा कर्व वैसे दिखाई देना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि उसमें शुरुआती में ही उसमें वायरस का लोड बहुत ज़्यादा है। तो ये हम चूँकि हम इसको ये क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, बहुत लोग इसको क्वालिटेटिव बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट क्वालिटेटिव, दिस इज़ क्वांटिटेटिव, या क्योंकि हम इसको हर एक साइकिल पे मेज़र करते हैं और हम देख सकते हैं कि एवरी साइकिल के बाद आपका कितना ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है? 8 साइकिल, 10 साइकिल, 12 साइकिल, इसीलिए आप देखेंगे सीटी वैल्यू एक नंबर फिक्स नंबर में आता है। आपको डिजिट में आएगा कि कितना है। तो 25 से नीचे है, 25 एक स्टैंडर्ड हम लोग मानते हैं कि 25 है, तो इसमें इसका मतलब है कि वो डायग्नोजेबल उसमें वायरस का लोड है, ठीक है? और इसको जब क्लिनिकल स्कोर से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि अगर 25 है, तो इसका मतलब है कि आप में एक मॉडरेट लेवल की सीवियरिटी है, ठीक है? ये प्योरली क्लिनिकली सबको देखा जाता है, ठीक है? आप किसी भी तरह का र्यूमर में मत जाइएगा। ये सारा साइंटिफिक वैलिडेशन होता है, ये सब साइंटिफिक चीज़ें हैं, ठीक है? ये साहित्य की चीज़ें नहीं हैं। तो अगर 25 से नीचे है तो इसका मतलब है कि आप में वायरस का लोड ज़्यादा है और आपको मेडिकल केयर की ज़रूरत है। तब आप अपना सिम्पटम्स देखिए और फिर उस हिसाब से आप रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर 25 से ज़्यादा आता है आपका सीटी वैल्यू, तो इसका मतलब है कि आपका वायरस का लोड कम है, ठीक है? लेकिन उस केस में भी आप वायरस फ्री नहीं हैं, तो आपको सेल्फ आइसोलेशन होके और आपको रहना, भले ही आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन मैंने बताया एसिम्प्टोमेटिक है, इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि आपसे वायरस नहीं निकलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है तो क्यों कराएँ? ठीक है, आप एसिम्प्टोमेटिक है, नहीं कराएँ, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया कि 33 टू 59% केसेस में ऐसा हो चुका है पूरी दुनिया में एक स्टडी के अनुसार। ठीक है, तो आप मान के चले अपने आप को कि मैं भी वायरस स्प्रेड कर सकता हूँ, तो बेहतर होगा कि मैं खुद अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लूँ और ये सारी चीज़ें अब आपको 100% करनी होगी। आप में इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं लागू होना चाहिए, आप अपने ऊपर कोई एक्सेप्शन मत लागू कीजिए।
उसके बाद अगर आपको लगता है कि आरटीपीसीआर अवेलेबल नहीं है या फिर किसी को ऐसा लगता है कि डाउट होता है कि यार मैं किसी के कांटेक्ट में आ गया हूँ, क्या करूँ, तो आप एक रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रिलायबल नहीं है, 100% रिलायबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, कई बार आपको फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि वायरस के साथ अगर कुछ भी प्रोटीन है, मैंने बताया कि वो निकल के आता है, तो ये कुछ भी प्रोटीन को भी ये डिटेक्ट करके आपको पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, तो फिर आपको, आप नहीं भी है फिर भी आपको घबराहट होगी कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि आपको कैसे अपनी स्थिति को समझना है, तो आप देखिए क्या कीजिए, मैं अब इसीलिए ना, मैं जो बेस्ट जो मैं सोच सकता था वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अगर आपका ये रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आता है और आप में सिम्टम, तो आप मान के चलिए कि आप कोविड पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है, फिर कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर। अगर नेगेटिव भी आता है और सिम्टम्स आप में मौजूद हैं, तो भी आप मान के चलिए कि आप कोविड पॉजिटिव हैं और आपको तुरंत आरटीपीसीआर कराना चाहिए। सॉरी, ये पीसीटी मैंने गलती से लिख दिया है, आपको तुरंत आरटीपीसीआर कराना चाहिए। ठीक है, अगर आप में सिम्टम है लेकिन फिर भी ये नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव आता है और सिम्टम नहीं है, और पॉजिटिव आता है फिर भी सिम्टम नहीं है, तो भी आपको उस स्थिति में आपको सेल्फ आइसोलेशन में जाना चाहिए, अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए। तो देखिए, मैंने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दिया आपका क्या सिचुएशन है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप फॉलो कीजिए। आप भी सेफ रहेंगे, पूरी फैमिली भी सेफ रहेगी, पूरा देश भी सेफ रहेगा। बहुत लोगों को डाउट था कि क्या क्या सिचुएशन है, तो क्या करना चाहिए, अब एकदम स्ट्रिक्टली इसको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद आता है कि अगर लंग में इंफेक्शन है, अगर लंग में इंफेक्शन है तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे लंग में कितना इंफेक्शन है, तो उसके लिए हम हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन करते हैं। ठीक है, अगर आप में, और ये तब आपको करवाना चाहिए खासकर जब आपको सिम्टम्स मॉडरेट का हो, जो मैंने पीछे क्लासिफाई किया। माइल्ड है तो आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, आप में इतना इन्फेक्शन नहीं है, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो रश मत कीजिए। ये मैं कह रहा था कि पब्लिक को पैनिक में नहीं आना है, आप लोग पैनिक में मत आइए, रश मत आइए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इस कैटेगरी में होते हैं जिनको सीटी स्कैन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पैनिक में आके घबरा करके और वो दौड़ लगा रहे हैं। मैं देखा बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं, सिम्टम्स नहीं है, सीटी स्कैन करा रहे हैं, स्कोर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है। तो क्यों इतना रश करना है, जब आप में सिम्टम नहीं है, आप अपने आप को देखो, आप वेट करो। आप हॉस्पिटल को भी ओवरबर्डन कर देते हो और आप अपना साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी खराब कर लेते हो पैनिक की वजह से, और आप जो रिसोर्सेस है उसका भी आप क्रंच, एक आर्टिफिशियल स्कैसिटी पैदा हो जाती है। कोरोना होता नहीं है, पॉजिटिव आया नहीं, सिम्टम्स आप में उतने हैं भी नहीं, फिर भी बात पहुंच जाती है आईसीयू और ऑक्सीजन तक, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब तक, उससे उससे कम में तो आदमी रुकते ही नहीं। तो ये जो दौर है, ये जो रश है, ये जो पैनिक रश है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं इतना डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ कि आप अच्छे से अपनी स्थिति को जज करें और उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। तो देश का जो अभी हालात है, इसको हम एटलीस्ट 10%, 15% भी अगर हम इसको कम कर देते हैं हॉस्पिटल में लोड, तो जो लोग वाकई जरूरतमंद हैं उनको हम बचा सकते हैं। आप ये समझिए, उनको हम बचा सकते हैं, उनको हम सपोर्ट दे सकते हैं। आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, आप माइल्ड हैं और आप ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भाग रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसको जमा कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल रही है। तो ये बहुत, हमारे देश में बहुत बड़ा आबादी ऐसा है जो कि माइल्ड है और उसको अभी भी हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, और जो लोग मॉडरेट या जो सीवियर हैं उनको हम ये रिसोर्सेज हम उनको पास ऑन कर सकते हैं, और वहाँ पे हम उससे क्या हो कि हम केस जो फर्टिलिटी रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि आपका एक रिस्पॉन्स पूरे इंडिया लेवल पे कितना बड़ा वो कंट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए मैं आपको इतना स्ट्रेस देके इन चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ। आपको तो लगता है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेला अकेला करके इंडिविजुअल लेवल से आप इसको पॉपुलेशन लेवल पे देखिए कैसे रिफ्लेक्ट हुआ। लापरवाही लोग अकेले अकेले करते थे और उसका आज नतीजा पूरा देश भुगत रहा है। तो वैसे ही ट्रीटमेंट में भी है, अगर आप इस तरह से दौर में होड़ में जाएंगे तो वाकई जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिलेगा, और आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आपके पास वो चीज़ पड़ी हुई। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो रेमडेसिविर का स्टॉक रख लिया। क्यों? आपको समझना होगा। तो सिटी स्कैन अगर आप जब मॉडरेट है तो ही करवाएं,
आपको लगता है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है, चेस्ट में थोड़ा भारीपन लग रहा है, तो फिर आप सीटी स्कैन करवाएँ और फिर जो उसमें स्कोर होता है 5 लोग के इन्फेक्शन के हिसाब से 1 टू 5 उसकी स्कोरिंग की जाती है, तो 1 से 0 से 25 तक उसका स्कोर होता है। फिर आप अपना स्कोर देखें, कुछ नहीं, आप पहले अपना स्कोर देखें। अगर आपको 7 से नीचे माइल्ड है, आप एकदम आराम से अपने घर में सेल्फ आइसोलेशन में जैसे है वैसे ही रहें। एकदम रश करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ का आपको उस समय ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पॉजिटिव माइंड से अपने आप को यहाँ से अगर लेके चलेंगे तो आप रिकवर कर जाएँगे। लेकिन अगर आप पैनिक करेंगे और आप इन रिसोर्सेज़ के पीछे भागेंगे तो आप माइल्ड से मॉडरेट ज़्यादा जल्दी सिक हो जाएँगे। इसीलिए आपको वहाँ से रिकवरी कोशिश करनी चाहिए विद पॉजिटिव माइंडसेट, ना कि आपको इन रिसोर्सेज़ के पीछे भागना चाहिए। ठीक है? जब ज़रूरत होगी तो अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास 8 से 17 है तो आप मॉडरेट हैं। आपको पता चल गया कि अब आपका सिम्पटम्स है और आपका जो क्लिनिकल स्कोर, तो ऐसे लोगों को हमको पहले हॉस्पिटल का जो सपोर्ट है, जो हॉस्पिटल सपोर्ट है, पहले हमको ऐसे लोगों को पहुँचाना है। या फिर जिनका 17 से ऊपर है उनको। तो ये लोग अब माइल्ड वाले लोग भी भीड़ में लग जाते हैं, मॉडरेट वाले भी। तो अब इसमें क्या होता है, जो सीवियर वाले लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है, हॉस्पिटल्स में कमी पड़ जाती है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, दवा नहीं मिल रही है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो नहीं मिल रही। तो प्लीज आप इसको अच्छे से समझ के, अपनी स्थिति समझ के आप अपने आप को थोड़ा रोक सकते हैं। और साथ-साथ जो ब्लड टेस्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपको ये सारे ब्लड टेस्ट कराने होंगे और ये फिर सारे ब्लड टेस्ट से फिर हम क्लिनिकल जो है आउटकम उसको मैच करके देखते हैं और आपके सिम्पटम्स से तो बिल्कुल हम एक नतीजे पे आ सकते हैं कि हाँ, आप माइल्ड हैं, आप मॉडरेट हैं, आप सीवियर हैं और आपको इस तरह का रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, तो इसमें आपको खासकर ध्यान रखना है कि आपका डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना है, ये सारा कुछ देखना है। डी डाइमर लेवल आपको देखना है कि डी डाइमर लेवल अगर नॉर्मल है तो फिर आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको ज़रूरत ही नहीं है उतना रश करने का, आप आराम से वेट कर सकते हैं और 2-3 दिन के बाद आप फिर रिपीट करा के देखें। तो हर आदमी अगर 2-3 दिन अगर हॉस्पिटल नहीं जाता है, तो आप समझिए कि पूरे देश में आप कितना बड़ा उपकार करते हैं। ये 2-3 दिन उन आदमी के लिए कितना क्रिटिकल है जो लोग सीवियरली सिक हैं। कितना ज़्यादा फैटेलिटी को हम रोक सकते हैं, अगर आप ये 2-3 दिन अगर हम रश ना करें तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ तो 2-3 दिन क्या घंटे, मिनट पे बात आ गई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूँ कि जहाँ स्थिति नहीं है वहाँ बिल्कुल घबराए नहीं। ठीक है? लोग रिकवर हो रहे हैं, 85 टू 90% रिकवर हो रहे हैं। आप अपने आप को उसी कैटेगरी में मान के चलिए, आप भी रिकवर हो जाएंगे। और बाकी जो टेस्ट है इसी हिसाब से हमें करवाना होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है? अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जो ट्रीटमेंट है माइल्ड का, जैसे आपको क्लासिफाई मैंने बताया, तो आप अगर माइल्डली हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सेल्फ आइसोलेट घर में हो जाइए। दवा बिल्कुल लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप सेल्फ आइसोलेट होइए और आप घर में जो चीज़ें हैं, जो आपका नेचुरली चीज़ें हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, हल्दी, तुलसी, लौंग, इलायची और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, स्टीम लेना, ठीक है? हल्दी, काढ़ा और ये सब आप इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि आप रियली इन्फेक्टेड हैं, तो आपको ये चीज़ें मदद करेगी। डॉक्टर के पास तभी जाएँ जब आपको लगे कि हाँ, थोड़ा-सा सिचुएशन मेरे लिए ऊपर-नीचे हो रहा है, तब आप जाएँ और जब डॉक्टर आपको अगर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो ही दवा लें। अभी जितने लोगों से मैं बात किया हूँ, उसमें 90% लोग ये दवा का नाम जानते हैं और वो खुद खा लेते हैं। खा लेने के बाद जब उनकी स्थिति खराब हो जाती है, तब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। ठीक है? तो ये बिल्कुल नहीं कीजिए। मेडिसिन इस वायरस का डायरेक्ट कोई मेडिसिन नहीं होता, आप सबको पता है, ठीक है? तो वायरस हमारा बॉडी जो है खुद फाइट करके खुद रिकवर कर जाता है। अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो एक तरह से आप अपने बॉडी को फाइट करने में और एक ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं। तो ज़रूरत नहीं है तो मत खाइए। और एजिथ्रोमाइसिन तो पूरा इंडिया इस तरीके से खा रहा है, तो मुझे तो ये डर है कि कहीं आने वाले 1-2 साल में ये एजिथ्रोमाइसिन किसी बैक्टीरिया पे काम ही नहीं करेगा। ये एक नया तरह का एक एक पैंडेमिक हो जाएगा कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंटीबायोटिक सारा रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए एंटीबायोटिक्स का सेवन आप तभी करें जब आपको डॉक्टर बोलता है और बिल्कुल उनको लगता है कि हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसी समय आप इस्तेमाल करें दवा का। बचें, जब तक आप बच सकते हैं बिल्कुल बचें और खुद से तो बिल्कुल ना करें। ठीक है? अब अपना सारा एसेंशियल पैरामीटर्स मॉनिटर करते रहिए, आप रिकवर कर जाएँगे। योगा, प्राणायाम जो आप कर सकते हैं, आप करते रहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहिए, अच्छी चीज़ें खाते रहिए, रूम को वेंटिलेट करते रहिए, बिल्कुल आप कर जाएँगे रिकवर। और अगर आप में कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है तो आप एकदम श्योरली आप रिकवर कर जाएँगे।
हाँ, लेकिन आप उल्टा पैनिक में जाएँगे तो फिर आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। मेडिसिन्स के पीछे भागेंगे, ये सारा मेडिसिन सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातों पे खुद खा लेंगे तो सिचुएशन और खराब हो सकती है, ठीक है? तो ये नहीं करना है आपने। अगर आप मॉडरेट हैं और सीवियर है तब आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? अब मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जो दवा का नाम आप जानते हो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। रेमडेसिविर वायरस के रेप्लिकेशन को रोकने में माना जाता है कि काम करता है, लेकिन ये हर एक आदमी पे काम करता है कि नहीं करता है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसीलिए रेमडेसिविर के पीछे भी भागना कोई बहुत बड़ा वो बुद्धिमानी का काम नहीं है। अगर रेमडेसिविर है, अवेलेबल है, अगर आप नहीं भागेंगे, हॉस्पिटल में अवेलेबल है, अगर डॉक्टर्स को लगेगा कि हाँ मॉडरेट है, तो आपको वो प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आपको देना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आउटकम हमेशा आपके फ़ेवर में ही आएगा, ठीक है? तो जब इतना ज़्यादा ये कोई मैजिक बुलेट की तरह काम नहीं करता, तो इसके पीछे इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा, बिना रेमडेसिविर रिकवर करते हैं। रेमडेसिविर था ही नहीं, वहाँ पे उस जगह पे अवेलेबल ही नहीं था और आराम से रिकवर कर लिए। तो जब है ही नहीं तो डॉक्टर दिया ही नहीं, जब दिया ही नहीं तो उनके पास कोई चारा ही नहीं था और वो रिकवर कर गए बड़े आराम से। तो इसीलिए कहता हूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे मैड रस मत नहीं कीजिए, ठीक है? अगर अवेलेबल है, हॉस्पिटल में है, अगर डॉक्टर्स को लगता है तो डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए। आप मत बोलिए प्लीज़। पेशेंट बहुत ज़्यादा अभी सुनने को आ रहा है कि खुद फ़ोर्स करते हैं, आप मत फ़ोर्स कीजिए। प्लाज़्मा थेरेपी है। प्लाज़्मा थेरेपी एंटीबॉडी के बेसिस पे होता है कि जो आदमी रिकवर कर जाते हैं, उसमें एंटीबॉडी होती है, तो वो आपके वायरस को कुछ हद तक कर सकता है, टेक केयर कर सकता है। लेकिन ये भी हर आदमी में करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अगर आपके पास प्लाज़्मा अवेलेबल है, तो आप दीजिए, नहीं अवेलेबल है, तो उसके पीछे आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मॉडरेटली सिक है, तो वो रिकवर कर जाएँगे, ठीक है? अगर बहुत सीवियर अगर हो गए हैं, तो आप प्लाज़्मा भी दे करके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा। तो आपको समझना होगा, स्थिति को समझना होगा और डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए और डॉक्टर्स पे ज़्यादा प्रेशर मत बनाइए कि आप प्लीज़ करो, प्लीज़ करो, प्लीज़ करो, ठीक है? हो सकता है कि उसका क्योंकि प्लाज़्मा के बाद बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन भी होता है और बहुत सारे लोगों में डिज़ीज़ सिवियरिटी बढ़ जाती है। ये सब भी होता है, ये सब भी हुआ है। ये एकदम साइंटिफिकली ये सारी चीज़ें का पूरा सबूत है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है जो आपको हर आदमी में काम करेगा और इसके पीछे हम एकदम होड़ में रहें। नहीं है, आप अपने आप पे भरोसा रखिए, आप ठीक हो जाएँगे। बहुत काम आता है इस समय आपकी पॉज़िटिव एनर्जी और आपका पॉज़िटिव हौसला, बहुत, बहुत बड़ा मेडिसिन का काम करता है। आप देखिए जो बड़े एजेड लोग रिकवर हो रहे हैं, क्यों रिकवर हो रहे हैं? अपने विल पावर, अपने पॉज़िटिविटी से वो रिकवर होते हैं, अपने पॉज़िटिव माइंडसेट से रिकवर होते हैं। तो आप भी हो सकते हैं। आपको मान के चलना है कि आप भी हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स तभी प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि हाँ, जब हमारा साइटोकाइन लेवल थोड़ा बढ़ रहा है तो फिर और ये बिल्कुल डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उनको करना है कि नहीं करना है। अभी माइल्ड होता नहीं है कि लोग सारे स्टेरॉइड्स के पीछे चले जाते हैं। इस स्टेरॉइड से आपको पता है बहुत सारा साइड इफेक्ट्स होता है और इसकी वजह से आपका डिजीज़ सिवियरिटी बढ़ जाता है और मालूम चलता है कि दूसरा प्रॉब्लम हो गया, अब उसके ट्रीटमेंट के पीछे में तीसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये सारी कहानी फिर ओवर ट्रीटमेंट होते-होते पूरा सिचुएशन खराब हो जाता है। तो इसीलिए आप पहले स्टेज में आप अपने आप को कोई भी सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाएँ, डॉक्टर्स पे भरोसा रखें क्योंकि अब डॉक्टर्स इतने दिन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से आइडिया है। आप उन पे भरोसा रखें और वो जैसे आपको सलाह देते हैं, बिल्कुल उसको स्ट्रिक्टली मानें। इसी तरह से फिर एंटीकोगुलेंट है, तो ये डॉक्टर्स आपको खुद प्रिस्क्राइब करेंगे। जब आपका डी-डाइमर लेवल देखेंगे, थ्रोम्बोसिस है, तो खुद करेंगे। इसीलिए आपको ज़्यादा इस पे घबराने की बात नहीं है। टॉसिलिजुमैब ये जो दवा है, ये दवा जो है ये साइटोकाइन IL-6 होता है, इसका इन्हिबिटर है। इसके पीछे मैं देखता हूँ इतना मैड रस है। आपको रुकना होगा। ये टॉसिलिजुमैब ये कोई ऐसा दवा नहीं है कि आपने दे दिया और आपका सीवियर पेशेंट भी ठीक हो गया। इसके बहुत सारे बुरे परिणाम भी निकल के आ रहे हैं। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है रॉस, रॉस ने एक थर्ड ट्रायल किया है, अभी क्लिनिकल ट्रायल किया था, उसमें टॉसिलिजुमैब प्लस रेमडेसिविर दोनों का उन्होंने यूज़ किया कोविड पेशेंट्स में। और उन्होंने खुद बोला है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन का जो थर्ड क्लिनिकल ट्रायल है, ये फेल हो गया। इसके नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं आए। और टोसिलिजुमैब से बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि डालने के बाद उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। यानी कि आप कंट्रोल कर रहे हो IL-6 लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, वो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा, फिर आपका पेशेंट रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ इन दवाओं के पीछे आपको भागना नहीं है। अगर डॉक्टर बोलता है कि नहीं देना है, अभी मेरे साथ मैंने अभी एक पेशेंट को देखा जिनका IL-6 लेवल बहुत हाई था, तो वो सेप्सिस के करीब-करीब पहुँच गया था।
लेकिन फिर भी मैंने उनको रोका कि आप टोसिलिजुमाब मत दो। डॉक्टर मान लिए मेरी बात को। ठीक है, हम 1-2 दिन क्रिटिकल पोज़ीशन बहुत अच्छा नहीं था, बहुत फ़ेवरेबल नहीं था, लेकिन वो रिकवर कर गया। अगर उस सिचुएशन में अगर मुझे पूरा डाउट है कि अगर हम टोसिलिजुमाब दे देते, तो शायद उनका रिकवरी मुश्किल हो जाता। तो मैं आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स बता रहा हूँ कि जहाँ पे ये रिकवरी हो सकती है और दवा देने के बाद सिचुएशन खराब भी हो सकती है। तो इसीलिए आप प्योरली डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दें। आप किसी तरीके से डॉक्टर्स को नहीं प्रिस्क्राइब करें कि आपने टोसिलिजुमाब अगर सुन लिया है, तो आप महँगी कीमत में भी ला कर के आप उनको दे रहे हैं कि आप प्लीज़ मेरे पेशेंट को दे दो। ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है? तो आप इन चीज़ों से बहुत चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम पेशेंटली सिचुएशन को समझ के रिस्पॉन्ड करें और एकदम केयरफुली अगर हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, उसके एक-एक सिम्पटम पे डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं अभी ट्रीटमेंट करते-करते, उनको बहुत अच्छे से पता चल गया है। तो वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं आप। तो और बाकी जो मेडिसिन है वो तो डॉक्टर्स अपने सिम्पटम्स के आधार पे और जिनकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ है उसके आधार पे वो ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है? तो आपका रोल इसमें बहुत कम है। आपका रोल इसमें बहुत कम है अगर आप मॉडरेट टू सीवियर के कैटेगरी में हैं तो। और ज़्यादातर केसेस में ये खुद रिकवरी होता है, ये खुद रिकवरी हो जाएगा। अगर रेमडेसिविर नहीं है तो भी मैंने देखा रिकवरी हुआ है। टोसिलिजुमाब मैंने तो खुद नहीं दिया और रिकवरी हो गया। इवन IL-6 बढ़ा हुआ था लेकिन 2 दिन के बाद एकदम नॉर्मल आ गया IL-6 एकदम नॉर्मल आ गया और उसके बाद सारा रिकवरी शुरू हो गया। 3-4 दिन पेशेंट हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहा लेकिन वो फिर रिकवर कर गया, आराम से रिकवर कर गया। ठीक है? तो आपको इस तरह से पैनिक में आके कोई ओवर ट्रीटमेंट या रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं करना है। अब देखिए, अभी जो नई ट्रीटमेंट जो अभी आ रही है, जो बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कारगर हो, अभी कल ही हुआ है इसके बारे में, विनकॉब-19 है। ये क्या है, जो प्लाज़्मा थेरेपी पे जैसे मैंने बताया था कि इसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप होता है, तो इन्होंने क्या किया, ये विन्स बायो प्रोडक्ट है, ये भारत की कंपनी है, हैदराबाद में है। ये बहुत सारे जो स्नेक्स होते हैं, उनका वेनम का एंटी वेनम बनाती है। तो इन्होंने क्या किया हॉर्स में स्पाइक प्रोटीन को डाला, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन डाला वायरस का और उसके खिलाफ एंटीबॉडी रेज किया है। अब हॉर्स सीरम से ये इसको कंसंट्रेट करके और ये अभी इनको 300 पेशेंट में ट्रायल करने की भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी इसका पहला दूसरा जो फेज का इसका ट्रायल है यूनिवर्स में बहुत अच्छा रहा है। तो अगर ये एंटीबॉडीज अगर आ जाती है तो फिर आपको प्लाज्मा और प्लाज्मा के पीछे भागने का बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। तो ये एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएगी तो ये बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म में रहेगा और बहुत हाई टिटर में रहेगा। तो हो सकता है कि हम इसको अगर हम मॉडरेटली सिक पेशेंट्स में ही अगर हम उस समय से देना शुरू कर दें, तो हम बहुत हद तक वायरस लोड हम बड़े अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। तो एक बहुत उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। दूसरा साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में मैंने अभी अखबार में भी लिखा है कि आप IL-6 तो मॉनिटर करते हैं, ठीक है? मेरा अपना रिसर्च इस पे रहा है, तो इसलिए मैं आपको बड़े अच्छे से बता सकता हूँ कि IL-6 जो होता है, वो अर्ली फेज़ में रिलीज़ होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि IL-6 बहुत ज़्यादा हो गया है, तो पेशेंट रिकवर नहीं कर सकता है और आपको टोसिलिजुमाब देने की ज़रूरत है ही, बिल्कुल नहीं है। तो आपको बाकी साइटोकाइन्स भी देखने की ज़रूरत होती है। अगर आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है TNF अल्फ़ा, ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर इसको बोलते हैं। दूसरा है इंटरफेरन गामा। अभी एक नई मेडिसिन आई है, ये जो इंटरफेरन गामा बेस्ड है, वो हेपेटाइटिस सी पे यूज़ होती थी। अब अभी उसी उसी का एक वेरिएंट है जो अभी नया मेडिसिन अभी जो लॉन्च हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले, मैं उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट वो इंटरफेरन गामा इन्हिबिटर है एक्चुअली। तीसरा है IL-1 बीटा। अगर ये चारों हम टेस्ट करें, प्रॉब्लम ये है कि हम ये साइटोकाइन्स लेवल को टेस्ट करना ये हर जगह मौजूद नहीं है, इसीलिए हमारे साथ बहुत बड़ा दिक्कत है। लेकिन अगर हम इसको एक क्लिनिकल ट्रायल जैसे बाकी देशों में हो रहा है, तो अगर TNF अल्फा जहाँ पे हम ये कर सकते हैं, तो TNF अल्फा अगर इंक्रीज्ड है, बहुत इंक्रीज्ड है, तो TNF अल्फा इनहिबिटर पे जो इन्फ्ली इन्फ्लिक्सिमैब ये जो मेडिसिन है, ये भी TNF अल्फा इनहिबिटर है। जैसे टोसिलिजुमाब IL-6 का इनहिबिटर है, वैसे इन्फ्लिक्सिमैब जो है सो TNF अल्फा का इनहिबिटर है। तो इसको बहुत देशों में इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ, तो इसके ट्रायल के आउटकम बड़े अच्छे आए हैं। इसमें क्या होता है कि ये TNF अल्फा को इनहिबिट करता है, तो TNF अल्फा के इनहिबिशन से क्या होता है, बाकी सारे साइटोकाइन भी इनहिबिट हो जाते हैं। तो मैंने बताया ना कि एक से दूसरा का साइकिल चलता है। तो अगर एक सेल अगर अपना प्रोडक्टिविटी कम कर, उसका इम्यून एक्टिविटी कम हो जाता है, तो बाकी साइटोकाइन भी रिलीज होना कम हो जाता है उसी अनुपात में। और उसके बाद ये जो है TNF अल्फा साइटोकाइन को भी रोकता है और साथ-साथ ये जो है डी डाइमर को भी ये घटा देता है। तो डी डाइमर घटा देने से आपका थ्रोम्बोसिस का रिस्क भी कम हो जाता है।
सतीश जी, तो अगर वो उसको एक्टिवली कंसीडर कर सकते हैं, आज भी अगर कोई मुझे सुन रहे हैं इस लेवल पे कोई है, तो उनको ये मेरी बात आगे तक पहुंचाने की जरूरत है और उसका वो करें इससे पहले कि हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। इसको हमको ट्रायल में लेके आना चाहिए। अभी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन का जैसे प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों की, तो प्रोनिंग जो भारत सरकार बहुत अच्छी अच्छी गाइडलाइंस लेके आई है, तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप ऑक्सीजन सपोर्ट, या अभी तो बहुत सारे मेडिसिन का भी नाम आ रहा है, मुझे मालूम नहीं है वो कितने कारगर है, लेकिन ये ज़रूर कारगर है। अगर आप प्रोनिंग करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन और जो भी सिचुएशन है, तो आपको इतना टाइम गैप जरूर मिल जाएगा कि आप जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है आप अपना कर लें और आप अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं। तो ये चीज़ें गाइडलाइंस आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके बाद मेरा बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है लोगों से कि खासकर वैसे लोग जो सिम्टोमेटिक हैं और जो पिछले कुछ दिनों में किसी सिम्टोमेटिक पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट कीजिए और आप एक चेन ब्रेकर बनिए, चेन मेकर मत बनिए। अगर आप आइसोलेट करते हैं, आप अपने घर में आते हैं और आप खुद को आइसोलेट करते हैं, तो आप पूरे घर को बचाते हैं। अब एक घर से दूसरा घर से, आप समझिए कि कितना बड़ा ये जो है चेन जो अभी बन गया है, ये आप पूरा जो है आप इसको रोकते हैं। तो एक ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है, लोग कहते हैं कि चलो यार क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल से क्या होता है कि अब हर घर में ये पूरे पूरे देश में अब ये फैल गया। तो आप एक इंडिविजुअल की लापरवाही होती है, लेकिन ये पूरा मिलकर ये पूरा देश बन जाता है, तो पूरा देश सफर करता है इससे। तो आपको ये अब बिल्कुल आपको रोकना पड़ेगा, ये सारा चीज, ये सारा सिचुएशन को समझते हुए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात है वैक्सीन के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं वैक्सीन का क्या स्टेटस है हमारे यहाँ। तो मैं आपको अभी वैक्सीन के बारे में, इंडिया के बारे में बताऊं उससे पहले एक बहुत अच्छा स्टडी हुआ है साउथ अफ्रीका में, इसके बारे में बताता हूँ। इससे आपको बहुत सारा डाउट और बहुत सारा वैक्सीन के बारे में जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपको पता चल जाएगा। तो साउथ अफ्रीका में भी क्या है ना, एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे ये वैक्सीन, और वहाँ पे एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी है B.1.351। तो वहाँ पे ये एक मिस्टर प्रोफेसर साबिर मादी करके वहाँ पे एक डायरेक्टर है वैक्सीन एंड इन्फेक्शियस डिजीज एनालिस्ट रिसर्च यूनिट के हेड हैं जोहान्सबर्ग में। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस वैक्सीन का इस वेरिएंट पे ट्रायल करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक दुनिया में जितनी भी वैक्सीन है ना, वो सारा फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ बनाया गया है, वो किसी बाद में म्यूटेंट के खिलाफ नहीं बनाया गया, किसी वेरिएंट के खिलाफ नहीं है, ठीक है। तो ओरिजिनल वायरस के खिलाफ बना हुआ। तो ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है, तो लोगों को डाउट हो रहा था कि ये वेरिएंट पे काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उन्होंने सोचा कि हम स्टडी करते हैं। इसको WHO ने फंड किया था, बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने भी इसको फंड किया था। और स्टडी करके बाद जो नतीजा बड़ा चौंकाने वाला था, जब इस एस्ट्राजेनेका का और ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पे उन्होंने जब एफिकेसी चेक किया, तो सिर्फ 10.4% था। बहुत मतलब ये बहुत कम है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 50% तो कम से कम होना चाहिए, तभी वो वैक्सीन एक्सेप्टेबल भी माना जाता है WHO से। तो देखिए ये एक्सेप्शनली लो है, खासकर इस वेरिएंट पे, ठीक है। लेकिन अगर इसका एफिकेसी हम दूसरे वेरिएंट पे देखते हैं, जो इससे यूके का एक वेरिएंट है B.1.7, यूके में जब स्टडी किया गया तो 74% था। और इसका जो ओरिजिनल एफिकेसी था ये वेरिएंट आने से पहले, वो भी काफ़ी अच्छा था, 66.7, ओके, ठीक है, एक ओके लेवल का था। लेकिन ये खास इस वेरिएंट पे देखिए इसकी जो है वो इतनी कम थी एफिकेसी। तो अब इन लोग को अब समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करें, और साउथ अफ्रीका की स्थिति बड़ी खराब थी। तो उस समय प्रोफेसर साबिर मादी ने जो बोला वो एक लैंडमार्क स्टेटमेंट है। तो आप सुनिए उन्होंने क्या बोला, मैंने पूरा उनका स्टेटमेंट कोट किया। उन्होंने बोला, while the AstraZeneca vaccine, like the first COVID-19 vaccine, is unlikely to interrupt transmission of SARS-CoV-2 or protect against mild infection from variant like B.1.351. These first generation vaccine could still provide the only sustainable option to prevent flooding our hospitals with severe COVID-19 cases and to mitigate COVID-19 death once the third wave hits. तो उनका ये मानना है कि इतना कम इफिकेसी के बावजूद भी इस समय उनके देश के पास इस वैक्सीन को देने के अलावा कोई चारा नहीं है, ताकि हम अपने हॉस्पिटल्स को रोक सके ओवरफ्लडेड से।
और जो थर्ड वेव अगर हिट करता है, जो अभी सुनने में आ रहा है कि अब शुरू हो गया है, तो हम डेथ्स को रोक सके। तो ये साबिर माजी साहब का ये था। फिर डब्ल्यूएचओ ने भी इसको कंसीडर किया और डब्ल्यूएचओ ने भी बोला कि ठीक है, इतने कम के बावजूद भी अगर हमारे पास ये वैक्सीन से अगर हम थोड़ा भी सिविरिटी को कम कर सकते हैं, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। और साउथ अफ्रीका में इसको अभी भी दिया जा रहा था दिया जा रहा है। तो अब इंडिया का स्थिति देखिए कि इंडिया में क्या स्थिति है। तो इंडिया में इस समय जो स्थिति है कि हमारे पास भी कोविशील्ड है और हमारे पास कोवैक्सीन है। और सबसे बड़ा अभी सवाल है कि क्या B1.617 के खिलाफ ये हमें बचाएगा कि नहीं बचाएगा। तो हमारे पास कोई पुख्ता डेटा नहीं है, लेकिन आईसीएमआर ने अभी थोड़े दिन पहले आके बोला कि जो कोवैक्सीन है वो B.1.617 वेरिएंट के खिलाफ अच्छा काम करता है। तो हमारे पास कोई पीयर रिव्यू डेटा तो नहीं है, बट आईसीएमआर का स्टेटमेंट हमारे पास दे रहता है। फिर मैंने सोचा कि कोविशील्ड के बारे में क्या, मैंने बहुत बहुत खोजा, कोविशील्ड के बारे में मुझे कहीं डेटा नहीं मिला। बट फिर जब मैं लिंक्डइन पे सर्च कर रहा था, तो मुझे प्रोफेसर राकेश मिश्रा, डॉक्टर ही इज डायरेक्टर ऑफ सीसीएमबी, उनका प्रोफाइल पे एक डेटा मिला, जो उन्होंने एक प्रिलिमिनरी डेटा शेयर किया था कोविशील्ड के बारे में, और जहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि कोविशील्ड का जो एंटीबॉडीज है वो B1.617 पे कितना कारगर है। तो वो डेटा मैंने फिर डाउनलोड किया, मैंने यहाँ लगाया नहीं है। फिर वो डेटा मैंने डाउनलोड किया, फिर मैंने देखा कि अच्छा, तो मेरे पास अभी इस समय इस दोनों के अलावा कोई सबूत नहीं है आपको ये बताने के लिए कि ये इसके खिलाफ काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप आईसीएमआर का ये डेटा को ट्रस्ट करें, और सीसीएमबी डायरेक्टर जो सीसीएमबी इसके डेटा को ट्रस्ट करके प्योरली मैं आपके ऊपर ये डिसीजन छोड़ता हूँ। मेरे हिसाब से अगर इस समय आप मास वैक्सीनेशन भी करते हैं, ठीक है, आप इस समय आप कंट्री को बचा सकते हैं, आप इस डिवास्टेशन से बचा सकते हैं। लेकिन आपको अगले 3 से 4 महीने तक आपको इसमें जो है सर कोई कंसेशन नहीं मिलने जा रहा है, किसी तरह का रिस्पाइट नहीं मिलेगा। 3 से 4 महीने तक अभी जो सिचुएशन अभी आज के डेट में भी अगर आप करते हैं, तो 3 से 4 महीने के बाद स्थिति सुधरेगी। तो सिचुएशन अभी इतना खराब है ग्राउंड रियलिटी पे, ठीक है। तो इसका दूसरा भी एक पहलू है। ये तो एक पहलू है कि ठीक है, अगर हम इनकी बात मान के अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं तो ये भी संभव है। लेकिन इसका एक और भी बड़ा दूसरा पहलू कि हो सकता है कि अब मैंने आपको बताया कि इसमें भी 3 नए आ गए हैं सब वेरिएंट। तो हो सकता है कि ये जो इम्यूनिटी है, जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है, ये काफ़ी कम समय के लिए हो और वायरस इसको फिर एस्केप कर जाए। और जब इसको एस्केप कर जाएगा तो फिर हमारे पास बड़ा सिचुएशन अच्छा नहीं आएगा, बहुत सिचुएशन खराब होगा। हम इसको कंट्रोल करना, तो ये जो वैक्सीन वाली कंपनी है, ये भी इसके बारे में बड़े अच्छे से वाकिफ है। तो उन्होंने जो है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन पे काम करना शुरू कर दिया। तो वो एक हमारे पास एक अभी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन का मतलब है कि हम मल्टी स्ट्रेन वैक्सीन बनाएंगे जो कि मल्टी स्ट्रेन पे इफेक्टिव होगा। तो अभी जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कंपनी के पास, उसको वो लोग मॉडिफाई करके और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम नए जो है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन को हम बनाएं। लेकिन इतना जल्दी नहीं है कि आप सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बना सकते हैं। अगर ये टाइम गैप सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन आपका अगर इनइफेक्टिव हो जाता है, तो उस टाइम गैप में अगर जो भी वायरस आता है, तो फिर वो हमारे लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये म्यूटेटिंग वायरस होते हैं, इसको प्रेडिक्ट करना कि किस तरह का म्यूटेशन होगा, आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक रेस है वैक्सीन और वायरस का, ये फिर ये रेस हो जाएगा। और इस रेस में कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा कि कौन जीतेगा, ठीक है। अगर वैक्सीन कामयाब हो गया तो इंसानियत जीत जाएगी, अगर वैक्सीन कामयाब नहीं हुआ तो इंसानियत के लिए खतरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर सारा इम्यूनिटी स्केप करना शुरू कर दिया, तो फिर हमारे पास चारा क्या बचेगा। तो ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा कि ये किस तरफ ये स्थिति जाएगी। फिलहाल अभी जो स्थिति है हमारे देश के सामने कि हमारे पास ये 2 वैक्सीन है और इनका डेटा हमारे पास ये है। अब लोगों के ऊपर प्योर है, उनका डिस्कशन है, उनको डिसाइड करना है। जो फैक्ट था मैंने आपके सामने ला के रख दिया, जो अच्छी बात है और जो इसमें जो नए जो चैलेंजेस है, वो दोनों चीज़ मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ये प्योरली आपका डिसीजन है। अब इससे संबंधित मैं आपको थोड़ा साइड इफेक्ट के बारे में भी बता दूं, जो अभी यूरोप में और जो कोविशील्ड का खासकर यूरोप में रिपोर्टेड था कि थ्रोम्बोसिस हो रहा था और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा था। तो मैं आपको बहुत डरने की बात नहीं, मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ कि अगर आपको 3 से 21 दिन में कोई भी वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको कोई सिम्टम डेवलप होता है, तो आप देखिए, ये भी एक अभी पैनिक का और जो अभी की स्थिति खराब करने में ये भी है। इसमें क्या होता है, वैक्सीन लेने के बाद बहुत सारे लोगों को कोविड लाइक सिम्टम डेवलप होता है, लोग समझते हैं कि मेरे को कोविड हो गया।
हालांकि अभी जो मेरे पास एक दो केसेस आए हैं उनमें मैंने उनको सिंपल बोला कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट करवाया तो देखा कि उनका डी डाइमर बढ़ा हुआ था, प्लेटलेट काउंट और घटा हुआ था। तो मैंने उनको इमीडिएट बोला कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और नॉन हेपेरिन एंटीकोगुलेंट लो। ठीक है, क्यों नॉन हेपेरिन बोला? अभी तक जितना भी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है उसमें हेपेरिन, आपको मालूम है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन दिया जाता है। तो लेकिन यहाँ मैंने उनको नॉन हेपेरिन के लिए क्यों बोला, क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक स्टडी है। अभी एक साइंटिफिक स्टडी करके देखा गया था, तो उसमें पाया गया कि आखिर वजह ये खोजा गया कि थ्रोम्बोसिस क्यों करवाता है। अगर ये रेयर साइड इफेक्ट है कोविशील्ड का, तो आखिर क्यों हो रहा है? थ्रोम्बोसिस होने का कुछ तो वजह होगा, क्लॉटिंग होने का कुछ तो वजह होगा वैक्सीन लेने के बाद। तो उन्होंने क्या देखा, बड़ा आश्चर्य था वो करने वाला वो स्टडी, मैं शेयर करूंगा कभी आपके साथ। उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो एंटीबॉडीज जो कोविशील्ड वैक्सीन देने के बाद जो एंटीबॉडीज बन रही थी ना, वो एंटीबॉडीज क्या कर रही थी कि प्लेटलेट को एक्टिवेट करवा रही थी हेपरिन के जरिए, और उससे क्या होता था कि प्लेटलेट का एक्टिवेशन हो जाता था, तो आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता था, प्लेटलेट की कमी हो जाती थी, और ये जो है क्लॉट बन जाता था, तो आपको थ्रोम्बोसिस हो जाता था। तो उन्होंने देखा ये तो बड़ा ही खतरनाक तरीके का काम कर रहा है। सीधा सीधा प्रूफ उनको हर में नहीं मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एंटीबॉडी को इस क्लॉटिंग के साथ डिटेक्ट किया, तो देखा कि बहुत सारा एंटीबॉडी इसमें मौजूद है। तो उन्होंने उनको पूरा स्टडी से ये पता चला कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एंटीबॉडी ही हेपरिन के जरिए ये करवा रहा है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमको हेपरिन नहीं देना। अगर हम हेपरिन देते हैं तो हो सकता है कि ये सिचुएशन को फर्दर खराब कर देगा। तो इसीलिए अभी भी आपके पास अगर पेशेंट में ऐसे भी इन जनरल भी अगर कोविड पेशेंट है, अगर उनमें थ्रोम्बोसिस नहीं इम्प्रूव हो रहा है, अगर आप इनोक्सापैरिन दे रहे हैं फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप नॉन हेपरिन एंटीकोगुलेंट ट्राई कर सकते हैं। और उससे अगर स्थिति इम्प्रूव हो जाती है तो आपको एकदम सामने नतीजा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन्फेक्शन के बाद अगर थोड़ा एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया, तो वो एंटीबॉडी शायद हेपरिन के साथ मिल करके और थ्रोम्बोसिस ज़्यादा करा रहा है। तो बहुत सारे पेशेंट अभी मुझे ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट मुझे वैसे मिल रहे हैं कि जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ उनको ऑक्सीजन लेवल उनका मेंटेन नहीं हो रहा है और डी डाइमर लेवल बढ़ा हुआ है। तो अभी मैंने अपने एक दो जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड हैं उनको बोला है कि आप तुरंत नॉन हेपरिन करके देखो, तो उसका अभी नतीजा मैं देखता हूँ अगले 2 दिन में क्या आता है, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसमें अगर बहुत सारे पेशेंट हैं उनमें वायरस लोड नहीं है, फीवर नहीं है, कफिंग नहीं है, सब कुछ, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग, थ्रोम्बोसिस हो रहा है, क्लॉटिंग हो रहा है, डी डाइमर लेवल इवन आफ्टर एंटीकोगुलेंट हेपरिन देने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो वहां पे आपको सीधा नॉन हेपरिन एंटीकोगुलेंट ट्राई कर सकते हैं। ओरल होता है, रिवरएक्सिन है, एक्सक्लूसिवली विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएंगे कि कितना डोज में उसका आपको देना है। ये सारा कुछ आप डॉक्टर से बात करके आप ये हम कर सकते हैं। और अगर कोई लोकल माइल्ड साइड इफेक्ट है तो इसके लिए वैक्सीन लेने के बाद तो इसके लिए फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये सीवियर जो साइड इफेक्ट था तो पहले लोग को पता नहीं चलता था, तो इसीलिए अभी मैं कहता हूँ जो वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको कोई भी सिम्टम डेवलप होता है तो आप पहले ये टेस्ट करवाएं। इसका कतई मतलब नहीं है कि आपको कोविड हो गया, आप पहले ये टेस्ट करवा के देखिए, अगर ये पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस हैं तो आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। बस ऐसे कि आप पैनिक में फिर वो रिएक्शन शुरू कर दें जिसके बारे में मैंने बात किया था। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा लोग पूछते हैं कि कितनी देर तक ये इम्यूनिटी रहेगी हमारे शरीर में। ठीक है, तो एक स्टडी हुआ है जो कि साइंस में पब्लिश हुआ था, उसमें उन्होंने क्या किया, पेशेंट को फॉलो किया कोविड के इन्फेक्शन के बाद 6 से 8 महीने तक फॉलो किया, और उसमें उन्होंने देखा कि क्या क्या इम्यून कंपोनेंट हमारा एक्टिवेट होता है। तो 4 हमारे इम्यून कंपोनेंट जो है वो एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहले ये बी सेल्स, ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाने का ये प्रक्रिया सीख लेता है, तो इसीलिए इसको फिर हम मेमोरी सेल बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसके पास मेमोरी रहती है, इन्फेक्शन होगा तो फिर ये एंटीबॉडी बना सकता है। तो ये जो एंटीबॉडी बनाता है, दूसरा है कि ये सीधा एंटीबॉडी जो बनाता है ये हमारे जो वायरस को उसको न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद जो हमारा लिम्फोसाइट है, WBC है, उसमें 2 तरह के सेल होते हैं टीसीएस में, एक CD4 है, एक CD8 है। तो ये सीधा क्या करता है, ये सीधा वायरस को किल करता है। देखिए सीधा सीधा वायरस को किल करने की इसमें क्षमता होती है। तो ये 4 तरह का कंपोनेंट है जो हमारे शरीर में एक्टिवेट होता है और जो पूरे वायरस के लड़ने के खिलाफ हमको इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो अब उन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे पूरे 6 से 8 महीने तक सारे लोगों में स्टडी किया। तो ये जो काले वाले जो लोग दिख रहे हैं आपको 6 महीने के बाद, ये करीब 40-42% लोग हैं, इनमें पूरी की पूरी इम्यूनिटी, ये चारों कंपोनेंट की इम्यूनिटी ये मौजूद थी। और यहाँ से जो रेड वाला शुरू हो गया, इसमें एंटीबॉडी शुरू हो गया था। तो करीब
60% लोगों में देखा गया कि एंटीबॉडी जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और 10-12% में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि अलग-अलग पेशेंट में कैसे-कैसे ये वैरी करता है, तो वो बड़ा वेरिएबल था, तो कोई भी निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक निष्कर्ष निकालना इससे ये संभव हो पाया कि एंटीबॉडी लेवल जो है डेफिनेटली 8 महीने में वो कम हो जाता है, वो कम हो जाएगा। और बाकी कंपोनेंट किसी में हो सकता है कि टी सेल मेंटेन हो, किसी में बी सेल मेंटेन हो, तो कुछ लेवल ऑफ आपको प्रोटेक्शन रहता है। कंप्लीटली आप प्रोटेक्शन खत्म नहीं होता, लेकिन अभी खतरा ये है कि ये म्यूटेंट जो जैसे-जैसे इमर्ज हो रहे हैं, तो ये जो इम्यूनिटी आपने गेन की है, ये एक वेरिएंट के खिलाफ है, तो दूसरे में काम करेगा कि नहीं करेगा? ये सबसे बड़ा अभी चैलेंज है हमारे पास। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फेज में जितने लोग इन्फेक्ट हुए, जितने एंटीबॉडी बने और जितना इम्यूनिटी डेवलप हो, वो सारा अभी काम नहीं कर रहा है। वो सारा जो वायरस है वो एस्केप कर गया। मैंने आर्टिकल लिखा, उसके बाद अभी नेचर में दूसरा आर्टिकल पब्लिश हुआ अलोंग द सेम लाइन, सेम थॉट उसमें था कि इम्यून एस्केप कर रहा है और अभी जो वेरिएंट है वो भी देखा जा रहा है कि इम्यून एस्केप कर रहा है। तो ये अभी हमारे पास ये हमारा करंट स्थिति है, जो कि हमें पता होना चाहिए बिल्कुल, और इसलिए पता होना चाहिए कि हम अपनी लापरवाही ना भूलें, क्योंकि हमारा लड़ाई खुद का है। ये लड़ाई हर इंडिविजुअल को लड़नी है, और देखिए यहाँ हर इंडिविजुअल से ये ग्रुप बनता है। एक-एक आदमी को लड़ना है, एक-एक आदमी को अपना कंट्रीब्यूशन करना, और जो मैंने बोला उसको फॉलो कीजिए। मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है चीज़ों को आपके समझने के लिए, आपको फॉलो करने के लिए। अगर आप समझ के फॉलो करेंगे तो बिल्कुल हम चेन को ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, और आप अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। तो देखिए आपको क्या मैसेज है, सिंपल बहुत आसान मैसेज मैंने लिखा है। सबसे पहले आपको अपने सराउंडिंग को समझना पड़ेगा। आप किस वातावरण में, किस माहौल में, घर में है, बाहर में, हॉस्पिटल में है, ऑफिस में है, वहाँ पे क्या रिस्क है, आपको ये पहले समझना चाहिए हर जगह, ठीक है? आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको इमीडिएट क्या करना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर खुद भी अपनाना है, और जो भी आपके सराउंडिंग है उनको भी आपको अपनाना के लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो डेली एक्सरसाइज है और डेली प्राणायाम है, ये आपको डेली करना पड़ेगा, ठीक है? आप स्टीम ब्रीदिंग एकदम रिकमेंडेड है, आप करते रहिए। जब तक कि वायरस आपके नाक और मुँह तक है, तब तक आपको ये सारी चीज़ें बचाएँगी। एक बार वायरस अगर लंग में चला गया तो ये चीज़ें नहीं काम आती हैं। लेकिन हो सकता है कि इनिशियल आपको वायरस अभी आपको इन्फेक्ट हुआ और यहीं पे हो, नाक तक ही मौजूद हो, अंदर ना गया हो, तो स्टीमिंग आपको बचा लेगा उससे। तो आप इसको कीजिए रेगुलर वे में, कहीं भी आपको इससे नुकसान नहीं है, आपको इससे फ़ायदा ही होगा। और जितना भी नेचुरली अकरिंग इम्यून बूस्टर है हाँ, आई विल कम टू दैट। अब लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। दूसरा है कि जो नेचुरली अकरिंग इम्यून जो बूस्टर्स हैं, उस पे आप फोकस कीजिए। आप बशर्ते कि आप केमिकल या फिर किसी तरह का मेडिसिन, या अभी मेरे को आज सुबह मेरा डसॉल्ट सिस्टम के साथ था, करीब 1200 लोग लाइव मुझे सुन रहे थे। आई वाज सरप्राइज कि अभी तो कोविड फैटिग हो गया लोगों का, लेकिन फिर भी इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी लोग को प्रिकॉशन लेना कि लोग सुन रहे हैं। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आज के लिए रिलेवेंट, लोग पूछते हैं कि मल्टीविटामिन लेने से कुछ होगा क्या? मैंने कहा देखिए, जब तक आपके शरीर में विटामिन की कमी नहीं है, अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी नहीं है, तो आप जितना भी विटामिन लेंगे वो आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है? आपका शरीर कोई गोडाउन नहीं है कि आप उसको खा लेंगे तो वो आपके शरीर में वो स्टॉक हो जाएगा। आपका शरीर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लाइव है, वो उसको जितना ज़रूरत होता है उतना ही एब्जॉर्ब करता है, जितना ज़रूरत नहीं होता वो सारा लीवर पे आपके टॉक्सिसिटी सारा लीवर पे असर होता है। आप मेडिसिन खाते हैं, आपको लगता है कि हम मेडिसिन खा लें तो हम बच जाएँगे, बिल्कुल नहीं होता। आप मेडिसिन खाते हैं और आपको अगर मेडिसिन खाने के जो एक्टिव कंपाउंड है, अगर आपका एक्टिव कंपाउंड अगर कोई आप में बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, आपने मान लीजिए कि आपने एंटीबायोटिक खा लिया, तो वो सारा एंटीबायोटिक्स कहाँ जाएगा? वो किस पे काम करेगा? जब उसको बैक्टीरिया ही नहीं है, उसको मारने के लिए वो किस पे काम करेगा? वो सारा लीवर पे का काम होता है सारा टॉक्सिक को क्लियर करना। तो कोविड सिचुएशन में मान लीजिए, एक तो लीवर बेचारा वायरस से परेशान है और आपने एंटीबायोटिक डाल के उस पे और उसका टॉक्सिसिटी बढ़ा दिया, तो आप उसको हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने आप को ज़्यादा परेशानी में डाल रहे हैं? तो ये बहुत मतलब साइंटिफिक चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ पूरा एक मिसकंसेप्शन है कि दवा खा लो तो बच जाओ। दवा का दूसरा भी इफेक्ट है जो लोग नहीं देखते हैं, और पता है इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन करके आप अपने बॉडी को, जो नेचुरली जो बॉडी आपका रिकवर कर सकता है, फाइट कर सकता है, उसको आप कमज़ोर कर देते हैं।
एंटीबायोटिक्स खाने से सबसे पहले आपका माइक्रोबायोटा मर जाता है आपके इंटेस्टाइन में, और माइक्रोबायोटा बहुत ज़रूरी है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आप जितना एंटीबायोटिक खाते जाएंगे माइक्रोबायोटा आपका मरता जाएगा, खत्म होता जाएगा। आपको देखिए इसीलिए आपको स्टमक प्रॉब्लम होती है एंटीबायोटिक खाने के बाद, आपको क्यों प्रॉब्लम होता है ये सारा, आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया मर जाता है सारा, और वो आपके इम्यून सिस्टम को जो है डीएक्टिवेट कर देता है, तो वो आपके वायरस के लड़ने में वो और कमजोर हो जाता है, तो स्थिति आपकी और खराब हो जाती है। आपको समझना होगा चीज़ों को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, पैनिक में नहीं जाएं, अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझें और फिर आप रिस्पॉन्ड करें। अपना जो भी मैंने आपको बताया है पूरा फॉलो करें, डायग्नोस्टिक का, ट्रीटमेंट का, और इमीडिएटली अगर कुछ होता है तो आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। आप ऑफिस में हैं तो आपके कोई पैनल डॉक्टर्स होंगे, आप घर में आपका कोई फैमिली डॉक्टर हो, आप उनको कंसल्ट करके और बिल्कुल बेस्ड ऑन योर क्लिनिकल कंडीशन आप कोई मेडिसिन लें। और अगर ऑफिस में है तो आपको अपना जो हेल्प डेस्क है उसको आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर ऑफिस में आपने इन्फॉर्म नहीं किया है तो बाकी लोग जो खतरे में हैं उनको तो बचाया जा सकता है ना। तो हर एक ऑफिस में अभी कोविड हेल्प डेस्क है, तो प्लीज़ आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए ईमानदारी के साथ कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हुआ है, तो ताकि ऑफिस में बाकी जो लोग हैं उनको हम बचा सकें, उनके साथ उनकी फैमिली, और ये फैमिली मिलकर पूरा देश, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको ये करना होगा। और आप इन्फेक्ट हो भी गए हैं तो आप प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल ये मत समझिए कि अब आप हेल्पलेस हो गए हैं। अभी भी लोग रिकवर बहुत अच्छे तादाद में कर रहे हैं और इसको हम बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि आप ये जितना मैंने चीज़ें बताया है अगर आप ये पूरा देश फॉलो करने लगेगा ना, अभी 86 से हम 90% रिकवरी रेट एकदम हम चले जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल 4% 5% लोग तो इतने ऐसे होंगे जो कि ये पैनिक में आकर के इस प्रॉब्लम को अग्रवेट कर रहे हैं। तो अगर वो 4% 5% लोग अगर वो कंट्रोल कर ले तो आज पूरे देश का स्थिति हम एकदम इमीडिएट कंट्रोल कर सकते हैं। रिकवरी भी हमारा अच्छा हो जाएगा, पूरे देश का माहौल भी अच्छा हो जाएगा, ये जो तबाही है, ये तबाही भी जो है आपको थोड़े कम होने दिखेगी, और ये जो एक क्रिएटेड काइंड ऑफ शॉर्टेज भी है वो भी कम हो जाएगा, तो जो सीवियर या मॉडरेट लोग हैं उनको भी हम ज़्यादा बचा पाएंगे। तो प्लीज़ मेरी बात को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और रिस्पॉन्ड उस तरह से कीजिए जितना आपको ज़रूरत है। ज़्यादा पॉजिटिव होने का हमें ज़रूरत है, और आप हमेशा मान के चलिए कि हम उस कैटेगरी में क्यों नहीं जाएँ। हम आप क्यों आप रश में चले जाते हैं? आपको क्यों लगता है कि हम सीवियर हो जाएँगे और हम लोग को ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी? आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम ठीक हो सकते हैं? और हम बड़े आसानी से ठीक हो सकते हैं। आप पॉजिटिव होके स्ट्रांगली आप फाइट कीजिए, आपके पास बहुत सारी मीन्स है, नेचुरल मीन्स, और फाइट कीजिए, आप ठीक हो जाएँगे। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस समय पूरे देश को ज़रूरत है कि सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना, पैनिक से निकल के, और रीज़नेबल रिस्पॉन्स इज़ द नीड ऑफ द आवर। यही बात मैं आज आप लोगों को बताने के लिए आज आया था। बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? आपके अभी भी बहुत सारे मैंने अब हिंदी में भी लिखा है, शुक्र है कि दैनिक जागरण वालों ने मेरा आर्टिकल पब्लिश किया, इससे पहले हिंदी में कोई भी मेरा आर्टिकल नहीं था। तो इसमें मैंने बड़े साफ-साफ लिखा है कि कैसे अगर आप पे सारा लॉकडाउन भी लगा दे, पूरा देश में लॉकडाउन भी लगा दे, लेकिन अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो करेंगे तो आज कुछ नहीं हो। क्यों? क्योंकि वायरस पूरे देश में तो ऑलरेडी फैल गया है, तो अब आप लॉकडाउन लगा के किसको रोकेंगे? पहला लॉकडाउन क्यों कामयाब था? क्योंकि वायरस नहीं फैला था इसलिए कामयाब था, और आज तो पूरे देश में वायरस है, तो अब वायरस में अब लॉकडाउन लगा के क्या करेंगे? और ये एरोसोलिक मोड से ट्रांसमिशन हो रहा है, फिर भी आप जो है लोगों से आस-पास मिलिएगा तो भी लॉकडाउन में भी कुछ आपको इसका इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, वायरस फैलता रहेगा। इसीलिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे ध्यान दें और माइक्रो लेवल पे कंटेनमेंट करें। जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा स्प्रेड है, उसको आप लोकली कंटेन कीजिए। लोकली कंटेन कीजिए और खुद पे प्रतिबंध लगाइए। खुद इस समय बहुत पावरफुल वर्ड है और ये पूरे देश को बचा सकता है, और यही आपको करना है। आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप ट्विटर पे आइए या लिंक्डइन पे आइए, लिंक्डइन पे मैं हूँ, वहाँ पे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली शेयर करता रहता हूँ। कोविड वैक्सीन का एक सवाल था मेरे ऊपर कि कोविड वैक्सीन जो है सो प्लेटलेट काउंट पे असर करता है, तो मैंने बता दिया कि कोविड वैक्सीन जो कोविशील्ड है वो उसका प्लेटलेट काउंट पे क्या असर है, मैंने बहुत डिटेल में बताया अभी आपको। तो आई होप कि उस सवाल का जवाब है दे दिया है मैंने। इसके बाद भी कोई सवाल है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमसे जुड़ के और सीधा आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। और ध्यान रहे, आप किसी भी रिमर्स पे मत जाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों पे मत जाइए, किसी भी लोगों की कही सुनाई बात पे नहीं जाइए। कोई आपकी मदद जो है सो इस समय कोविड में आपको गुमराह करेंगे।
आपको किसी की बात सुननी है तो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर्स की बात सुने, साइंटिफिक लोग हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट लोग हैं, आप उनकी बात सुने। जितने लोग आप हमसे जुड़ सकते हैं आप जुड़िए, आपके जो सवाल है मैं आपको जितना जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको सही सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन अपने आप को गुमराह मत होने दीजिए और ये पैनिक बिहेवियर को बिल्कुल बंद करके एक रीजनेबल और सेंसिबल सिटीजन की तरह आप पूरे देश का मदद कीजिए एक अपना अच्छा रिस्पॉन्स दे करके। इसी के साथ आप One- सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर रेड्डी साहब को, वो आगे फिर इसको चलाएंगे। अब मैं क्या बात करूँ, आपने सब कुछ समझा दिया है लोगों को, दुनिया को। द ओनली थिंग इज, let me put it in English and Telugu for all those viewers. I think it is very clear, and the YouTube has to understand this channel, this show runs on science and logic. What a better way than explaining the present state of COVID with all the data? Now you tell me, is it not our duty to enlighten people so that it is the citizens' responsibility? When can they become responsible public people or citizens? When they become well informed. So this channel, this live show makes people informed, and they are most welcome because diversified opinions always are there. It's Dr. Satish Ranjan and myself, Covaxin or Covishield. We were the ones to put it, stating that they have not gone even through third stage trial. Why should you? As you rightly said, immunoescape. If all without proper trials, if you enter, the immunoescape is a big dangerous thing which we can never handle. As you rightly pointed out, don't panic. 85 to 90%, as he stated, can recover just like that. In the other 10% also, not to panic. And we should not panic so that those in need, those in critical need, they can have oxygen beds, ventilator beds. When you don't panic, why this panic becomes a habit? Because you don't adopt preventive measures. Prevention is better than cure. Keep this in your mind. We have been telling very clearly right from last February, March. Wash your hands with plain soap when you go out. It's okay. Sanitizers. Keep physical distance, not social distance. Socially, you should be alive. It is physical distance. And wear masks in crowded places or anything like that, wherein you feel you are getting into an infected zone. That is all you have to do. And expose yourself to morning sun. Do pranayama exercise daily and nutritious diet. We have to salute our farmers. They have provided us much needed nutritious diet. India. That is how you could overcome the first phase. But what happened? Rallies. Whom to blame? Politicians, administrators, election commission, legal authorities. Whom should we blame? Now we are falling sick. India is falling sick. So think and adopt such measures which will never allow you to get into diseased mode. I only hope you will take all those precautions so that we can win this situation once for all. Again, let us start getting that natural immunity as was done with the phase 1. Let us overcome this also, but we ourselves should be informed and we should be responsible for our life, present and future also. So think. So this is what it is for today. జాగ్రత్తలు తీసుకోండి, భయభ్రాంతులకు గురి కాకండి. మీరు భయభ్రాంతులకు గురై అవసరమైన వాళ్లకు హాస్పిటల్లో సదుపాయాలు లేకుండా చేయడం, మీ భయాందోళనలో మీరే పోయి ఆక్సిజన్ కానీ వెంటిలేటర్ బెడ్స్ తీసుకుంటే మిగతా వారికి ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి భయాన్ని తొలగించండి. అదేవిధంగా నివారణనే ముద్దు, కరోనా వద్దు, అది కూడా ఆలోచన చేయండి. పౌష్టిక ఆహారం తీసుకోండి, చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కుంటూ ఉండండి. ఉదయం సూర్యరశ్మికి మీరు ఎక్సర్సైజ్ వ్యాయామం చేయండి. అదేవిధంగా మీరు అవసరమైతే తప్ప బయటికి పోకండి. చూసాం రాజకీయ నేతల ర్యాలీలు ఇవన్నీ కొంప ముంచినాయి. కాబట్టి మీరు వాటన్నిటికీ నో చెప్పండి. మిమ్మల్ని మీరు సురక్షితంగా ఉంచాలంటే భౌతిక దూరం, సామాజిక దూరం కాదు, భౌతిక దూరాన్ని పాటించాలా. బయటికి ఎక్కడ పోయినప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు కవర్ చేసుకుంటే మీ ద్వారా ఇంకొకరికి పోదు, వారి ద్వారా మనకు రాదు. దాంతోపాటు పౌష్టికాహారం,
ధైర్యాన్ని, మనోధైర్యాన్ని కోల్పోకండి. మనోధైర్యం అని చెప్తే ఏదంటే అది మరి చేసేసే అటువంటి మనోధైర్యం కాదు. మీరు కావాల్సినటువంటి చర్యలు తీసుకుంటూ అటువంటి మనోధైర్యాన్ని పెంచుకుంటే సహజ రోగ నిరోధక శక్తి, న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ అవకాశాన్ని మీరు కోల్పోకండి. మన ఇంట్లో, మన దగ్గర మొదలు కావాలా, మన కుటుంబంలో మొదలు కావాలా. తద్వారా మన సమాజం, రాష్ట్రం, దేశంలో కూడా మార్పు వస్తుంది. దిస్ చేంజ్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ సెల్స్ సో దట్ అవర్ ఫ్యామిలీ విల్ చేంజ్, సొసైటీ విల్ చేంజ్, state, country and world alike. So let us start doing all those good things which would really help us to stay healthy, to stay safe and lead a happy and comfortable life. Yes, there have been some questions. Government should own the responsibility, they said. Some said court should own the responsibility, politicians should own the responsibility, administrators, whatever it is. But first let us stay safe. Let us employ all those methods which will make us safe, our family safe, society, state and country safe, so that is what is going to help us. And definitely we will demand Honorable Prime Minister and all the chief ministers to see that monthly they put something into every citizen's account, except those 1% who are healthy, who have become richest in the Forbes. But rest of the people, journalists like us who have been living their precious lives, they have to be taken care of. That is what they all wanted. So at the same time, thanks again Dr. Satish Ranjan. Hope YouTube and all those who have been following this show regularly understand this show runs purely on science and logic. We have no sides except larger public interest. For us, every single citizen matters. If we can save one life, believe me, our job is done. If we can influence, sensitize one citizen with proper knowledge, science and logic, in turn he will become a legacy. By the word of mouth, all goody things will spread across this society. So that is what we always think of while doing the show. Once again, Dr. Satish Ranjan ji, thanks a lot to you, and don't go away. Let me say bye to India. Sukha, Nidra, Shubha Ratri and different continents. Good morning, good afternoon, good night. Take care. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy saying bye. At the same time wishing you that you all stay safe, protect yourself, protect the society, country and world at large. Thank you a lot. Thank you very much. Yeah. Just stay, sir. 1 second. This conference is no longer being recorded.